Sir, first of all, thank you so much for making time. Always a pleasure. I had no idea JNU was this pretty. For real though, like what you hear of JNU and what JNU is a completely different story. So sir, before I begin, there's a couple of things I want to sort of let you know. One is कि ये podcast बड़ा conversational होता है. कहीं पे भी मैं कुछ मतलब मैं इंटरव्यू नहीं करूंगा, आपको कहीं पे भी लगे प्रखर उल्टा सवाल पूछ रहा तो बोल देना, सुन अच्छे से पूछ, ठीक है? The second one is I have been watching your clips on Twitter and on the news for a very long time. Right. Before I think podcasting was a thing, तब से you've been belting people left right. And I think it is safe to say India के ecosystem में one of my favorite debaters is you. So there might be a couple of points in the course of this conversation जहाँ पे I will take a necessarily antagonistic position. Absolutely. So that I can ask you the best question because I'm sure there's enough critics you have outside. Absolutely. Right? So that is not a representation of my original. है ना? Yeah, and the audience has to know this. वरना eventually, you know. So my first question to you, sir, purely out of curiosity, is do you write those monologues down or is that just like Yes. soul? It's a must. हाँ. Because unless I write them down, I cannot remember them. Yeah, and there is a lyricality to it. Yes. So, and I found this out very quickly through habit. Because in fact, I had been writing sometimes long form, sometimes articles of length, 2,000, 3,000 words for about 14 years. I mean, 2010. And I always, I use this phrase, let the dust of thoughts settle. It's always writing that has informed me, reading, things that have been written by people. Because when you write things, there is a kind of, जिसे हिंदी में कहते हैं ठहराव आ जाता है. You know, Right. You get more logical, more rational. Your brain starts to fight for the thoughts that must get onto the paper. Right. मतलब you don't blurt things, it's very, very rarely, and those people are geniuses. जो उनके मन में आता है वो लिख देते हैं, and it's like, my God, this is a work of genius. Very few writers manage that. Very few. The fact of the matter is that unless you write things down, you cannot structure what you do. So it kind of came naturally to me. And sometimes, so I always ask the topic of the debate hours before the debate. So I think yesterday was Sandesh Khali. I asked what is it going to be, and I think yesterday's debate was regarding A. Raja's statements and all that stuff. So I write things down, what is to be said, and this I have learned, I would say, from the new generation that's totally audiovisual. That you have to deliver a package of sorts. So it's not that you write, let's say, 500, 600 words and you can just remember it and say it. No, it has to be a package. There has to be a start and an end to it. It has to have a few punches. It has to have a punchline. It has to have a sprinkling of facts, some humor. It has to, so that clip is a complete package of sorts. How many times are you writing this before? Or like, are you writing it once and then remembering it? How's Yeah, so the mere process of writing it down, some novelty comes in, a sentence, a quirkiness that I remember, that I like. And if you like something that you write, you remember it. That's the training. Right. Because with A. Raja, you were like, this is not something he's doing out of his job. This is his job to be divisive. It is his job. Right. It is, I mean, if he doesn't do it, वो सोचेगा यार मैं आज क्या करूँ उसके. But it is, पता है, this is not even part of what I've written. When I saw all those statements being made, मतलब मैं ये सोच रहा था यार आप क्या मैसेज भेज रहे हो उस आदमी को जो अभी जिसने अपनी सेंसिबिलिटीज फॉर्म नहीं करी हैं. Like you are literally at its core dividing a nation which is already very hard to hold, no? But Prakhar, he's not dividing the country. He actually is not. He is looking after his constituency. Politicians are the cleverest people you can think of. Okay, and I'll tell you why. Because their job is on the line 24 hours a day. Right. And you may think, अरे ये कैसे हो सकता है? मतलब, save for Rahul Gandhi, whose job is there 24 hours a day. But then he's not a politician. He's a dynast. But people who have to worry about whether they're going to remain on that seat, they have to be fiendishly clever. Because they have to make sure that they know their constituency. They know their voters. Right. They have to at all times please their voters. मतलब वो कभी मुझे आज तक एक clever politician ऐसा नहीं मिला जिसने अपनी constituency को antagonize किया हो. वो फिर politician नहीं है, वो एक he's an honest man. Let me put it this way.
He's an like activist maybe. somebody came up to me other day and said, "Sir, are you happy or are you married?" You know, उस type का था. So you're either a politician or you or an honest guy. There is a तो dichotomy. राजा को ये पता है. राजा जो ये स्टेटमेंट्स कह रहा है, इतनी गंदी गंदी अभद्र हमको लग रही हैं, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को वो फीड कर रहा है यार. तो आप कह रहे हो द कॉन्स्टिट्यूएंट्स इटसेल्फ, जो उसकी पॉपुलेशन है उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी की, वो ही डिवाइसिव माइंडेड है. डिवाइसिव कह लो या कह लो कि एक्सक्लूसिव है, हाँ. सुप्रीमेसिस्ट है, हाँ. अदरिंग हो गई है उसकी. अब आप कोई किसी इमाम साहब को ले लीजिए. एक इमाम गए थे रामलल्ला की कॉन्सेक्रेशन सेरेमनी पे 22 जैन. उनके अगेंस्ट फतवा हो गया था. One imam went there, and even I had to appeal. Lot of other people appealed for his security, you know, for him to be given security, because आजकल के ज़माने में आपको नहीं पता कुछ है. Right. तो बाकी जो 99 इमाम्स हैं, उनको वो क्या लेसन गया? कि ये तो मैसेज वायलेंस है ना, कि तुम स्टेप मत करना लाइन को छोड़ के वरना काट देंगे. Right. हाँ. So what do you think they're going to say? Nothing. No, I mean, when they make a speech on Friday, Right. will they say, let's all go to Ram temple? No, they won't. No. They have their constituents. Right. So this message has gone to A. Raja's constituents. Whatever Udaynidhi Stalin said, he said it deliberately, and he said it with a lot of thought behind it. Not just because his ideologues are people like Periyar, who've said 100 times worse things. I mean, you know, the kind of things even forced even Nehru to say this guy should be put in lunatic asylum. Right. And the key thrown away. That is Nehru saying. Yes. You know, and so this is a pattern. You know, I mean, suddenly you won't find Sitaram Yechuri saying that, oh my God, communism is evil, and you know, you can't make money. Why would he say it? His constituents are still voting for it. Right. They want to see, they want to hear. Raja's voters want to hear him say this, yeah. So all politicians are populists. Absolutely, 100% in one way or the other. And so be that Stalin or be that Raja, they are appealing to an in-group. तो out-group को सुन के कुछ भी लगता है, कोई फर्क नहीं पड़ता. कोई फर्क नहीं पड़ता. कोई फर्क नहीं. Let me pause this conversation for a second to remind you the subscribe button is right underneath the video. And if you haven't pressed it, what are you doing? What are you waiting for? You're loving this conversation. You enjoy this. You want to watch more of this. So press the subscribe button and press the bell icon right next to it so I can see you around for more conversations just like this. But does that then logically mean कि जो constituencies these guys represent Yes. have this othering sentiment towards the rest of India? 100%. अदरवाइज यू नो, जैसे मैं कह रहा हूँ, सबसे सेंसिटिव एंटेना पॉलिटिशियन का है. सबसे सेंसिटिव. जिस दिन इनको पता चल गया उदयनिधि स्टालिन सिंह कि भाई यू नो, इफ वी से एनीथिंग अगेंस्ट सनातन धर्म और लॉर्ड राम और एनीबडी एल्स, वी आर गोइंग टू लूज वोट्स, दे विल नेवर इवन अटर. ये तो मंदिर जाना शुरू कर देंगे, यू नो, घंटी बजानी शुरू कर. समझ गया मैं. ये लोग पकड़ लेंगे उस सिग्नल को. 100%. ये लोग पकड़ लेंगे सिग्नल. Absolutely. तो so then there is a significant divide between say a North Indian Hindu and, क्योंकि इनके भी constituents Hindus ही हैं. Like there's no religious sort of demarcation between, right? सिर्फ cultural demarcation है. There is, yeah. I mean, well, let me put it this way. Yeah. We don't know the extent to which many states down south have changed in terms of demographics, in terms of this. I mean, Andhra, people say, is going to be majority Christian state. It's just that people are not declaring it openly. Because the moment, you know, you say you're Christian, you lose a lot of amenities that you get otherwise. Huge swathes of South India are being converted ruthlessly. And systematically? Totally systematically. I mean, in Tirupati, the preponderance of churches that you have in Tirupati, the preponderance of mosques that you have in some regions of Kerala, is unbelievable. People are just not aware of it. Or they think, यार कम है, हम we are 1 billion Hindus strong. एक तो ये भी sentiment है ना, कि हम 1 billion है, बाकी हो जाए. पर भाई ऐसा नहीं है. Rahul Roshan who says this, that we may say that we are 78% of the population, but in effect, we are actually fast becoming less than 50%. And that is because of the Conversion, so many other things. You leave the fold of Hinduism even without leaving the fold of Hinduism. I mean, who else are communists? Right. I mean, would you say urban Naxals, they want to destroy Hinduism, right? Right. So, and yet they say we are proudly Hindu. Self-hating They sport Hindus. Bindi. Yeah. So, एक वो भी है और एक तो वाकई कन्वर्ट हो गए हैं. Right. So, you know. मेरा एक दोस्त है सर पंजाब में, मैं उससे सिर्फ उसके पंजाब, मतलब unbelievable, the kind of proselytization, मैं हिल गया the conversion, crazy.
वो मेरे को कह रहा है मेरे बगल वाले गांव में कोई, मैं कह रहा हूँ सिख कन्वर्ट हो रहे हैं, सिख कन्वर्ट होने का तो मैंने कभी कॉन्सेप्ट ही नहीं सुना है। वो पता है पूरा गांव, ही इज लाइक, मैं उससे कभी नहीं मिला, हम सिर्फ वीडियो गेम खेलते रात में। और मेरे को कह रहा है मेरे बगल वाले पूरे गांव में सिर्फ सब कन्वर्ट हो गए। एंड सी, रिलीजन इज अ मैटर ऑफ पर्सनल फेथ। मैं कौन होता हूँ किसी की उस पर कन्वर्ट करने, वो कोई कमेंट करने वाला। बट ही सेज द इंसेंटिव स्ट्रक्चर इज फ्री एजुकेशन, तो इट्स एन इकोनॉमिक इंसेंटिव स्ट्रक्चर 100%, जिससे फेथ कन्वर्जन हो रही है। और डज दैट लेंड इटसेल्फ टू अ मार्जिनल, मतलब कितना डरूं मैं इस चीज से? Is there something to be afraid of? Yes. ठीक है कर लो यार, तुम्हें पहले मैं देखो सोचता था, see it's not like a stream of science कि यार you believe in something scientific and you don't believe in it, और दोनों लड़ गए टेबल पे आके। कोई कह रहा है कि नहीं, I don't believe in let's say theory of evolution. The other guy says, well, I believe in theory of evolution. They come on the table, they put their facts, they fight metaphorically, and they go home either convinced one way or the other, or they say like, we've entrenched views and my views are even more strengthened now. Right. Religion is not like that, you know. So the moment you convert, you are forced to forget who you were, what your roots were, who your ancestors were, what they fought for. Everything is blank slate. I mean, if you read Naipaul, who it is one of my favorites in terms of the most perceptive thinkers in the last 100 odd years. And his two iconic books that preempted this whole Islamic quote-unquote invasion that has happened in the last 40 years, Among the Believers and Beyond Belief. So he went to these newly converted Islamic countries as well as the old ones. And he put out this theory that, you know, you're forced to forget everything that you belong to. It's like you're given a clean slate. And that is what has happened with Pakistanis as well. I mean, they actually believe their roots are Turkey. in the sand dunes, Turkey. वहां पे वो उनको गालियां देते हैं, you know, they think अरे लोली क्लीनर है। यहाँ पे तो वो संत महात्मा बना रखा है कि हम तो वहीं से आए, अपने रूट्स भूल गए। The problem is, चलो वो भी कर जाओ आप, because that's a personal decision. How can I stop you from, you know, if you're wrong, be wrong. I mean, I'm a free speech absolutist in that sense. What happens is that when you start to become so much of a tribal that the value systems that are endowed to you newly, you begin to thrust them onto others. That is the danger. So in Jharkhand, there are places where they say कि अब Sunday को छुट्टी नहीं होगी, अब Friday को होगी. There are places where so many things are banned. There are places where so many things are now newly opened. In Kashmir, as you know, famously theatres were banned. The sitting chief minister even advocated stoning, death by stoning as a punishment. That is dangerous. When the value systems that are inherently alien to a free-thinking culture, civilization, when they are thrust, that's the danger. And we simply are not able to comprehend that any of that thing can happen. It is happening, right? I mean, you talk to people from Kerala, and honestly, I'm not saying without any, kind of thinking one way or the other to prejudice you. You talk to, your uncles and you say, how were things on the road 40 years ago? And they would say it's changed drastically in Malappuram and all those districts. You know, you see burqas now as a norm. 40 years ago, everyone would be staring at someone who was wearing a burqa. It was so uncommon. That's how things change. I have a couple of questions because it seems like you look at it as an existential risk of sorts. It is. Right? For me, it is, yeah. My first question is, जो आप कह रहे हो, this imposition, this evangelism that comes with this kind of conversion behavior. So आप कह रहे हो, देखो तुम clean slate कर दो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है. Yes. But अगर तुम evangelize करने लगो, उसको public policy में introduce करने लगो, उसके outlets law में निकलने लगे, तो there is a problem. Yes. But is that not the case with, say, the beef ban? Is that not the case with Gujarat में alcohol की sale? Yes. Is that not also the same ilk of things? Well, okay, so let me explain. That's a beautiful question. पहले तो मैं जैसे जो न्यू वैल्यू सिस्टम्स आते हैं वो हमेशा थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को सब्जुगेट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल कैथोलिक्स, दे डोंट बिलीव इन यूजिंग प्रोटेक्शन, आई मीन व्हाट यू कॉल दिस, condoms, Right. birth control. Funny, it took me 2 seconds to come to that phrase. As a biologist at that. Okay, now you talk to a Brit. Right. In America or Italy, Catholic, home of Catholicism, and say, no, don't use birth. चल side पे हो भाई, क्या बोल रहा है? The same Pope goes to Philippines, newly converted, or, says don't use. There's a population explosion over there.
So in countries that ironically were the birthplace of these religions, they are more forward looking, more reformist, because reform has happened in Christianity. They say, go to hell, we'll do what we want to do. That is not the case in the newly converted countries. That is an added danger to that. Okay. Now let me come to your question. So I have always been against prohibition, alcohol prohibition and all. But funnily enough, a lot of these draconian things that you talked about, beef ban, you talked about alcohol ban, our constitution, like it or not, was heavily influenced by the vagaries and madness of Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi was against prohibition. In fact, he said, मैं एजुकेशन को हटा दो, वो मैं सह लूंगा, लेकिन अल्कोहल कोई पी ले ये मैं नहीं सह पा. He said this. I'm paraphrasing him. He said this. I've tweeted the exact phrase. He has said, killing of a man is less than killing of a cow. तो ये थेरीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आ गई कि अल्कोहल प्रोहिबिशन का आ गया, काउ स्लॉटर बैन आ गया. तो ये सब चीजें रिलीजन के उस पे नहीं है. ये सब चीजें महात्मा गांधी की वर्शिप करके आई हैं हमारे देश. बट इनडायरेक्टली महात्मा गांधी हैज अ हिंदू इन्फ्लुएंस. अब महात्मा गांधी अब उनको भगवान बना रखा है, महात्मा बना रखा है. राइट. सो अब लोगों ने सोचना शुरू कर दिया. आई मीन, यू रीड विवेकानंदा, यू रीड बीफ बैन. या, सो दिस इज अ महात्मा गांधी inspired phenomena. ठीक है. And see, I have a lot of... And I'm against it. I have written authoritatively with facts against prohibition. When Bihar, Nitish Kumar, I was against it. I am against Gujarat. And I have given economic reasons as well. हाँ, टैक्स कलेक्ट कर लो. अरे यार, इतना पैसा लूज होता है गुजरात में. और इतना क्राइम बढ़ता है क्योंकि ब्लैक में बिक रही है. एक वो है, लेकिन उसके प्रोज एंड कॉन्स ये भी हैं कि कई जगह इतना ज्यादा अल्कोहल, जैसे तमिलनाडु, व्हेन द स्टेट डिसाइड्स कि हम अपना सारा रेवेन्यू हम अल्कोहल से लेंगे, तो वो भी गलत है ना. दे हैव गॉन टू द एक्सट्रीम. Agreed. So And see, this is what I've come to like about you. Because at least to my eye, you were the one talking about free speech and its absolutism, even if somebody is completely wrong and stupid and on the opposite side of the fence. 2011, I wrote a piece called a Requiem for Galileo. That was my first piece that I wrote for free speech. यार, free speech ही है, वरना तो आदमी, देखो, दो स्ट्रगल होती हैं आदमी की स्टेज में. वन, struggle for food. If you're very poor, you don't know where your next meal is coming from, then you don't give a damn about free speech or temple control or Waqf Act and places of worship act. Culture doesn't matter. Side पे हो, पहले मैं अपने बीवी बच्चों को बचा लूँ, है ना, वो कर लूँ. That is one stage. What happens after your stomach is full? What happens after you have a job? What happens after you've taken care of your family? That is when you gravitate towards other issues. Right. Your mind wants to be free. That is where you say कि यार अब मुझे फ्रीडम चाहिए भाई. अब तो मैं जो बोल रहा हूँ वो खाना तो आ गया मेरा, अब मैं नेक्स्ट क्या करूँ, So anyway, I digress. But the Chief Justice was asked, can ideas be punished? Altamas Kabir, I think was his name, 2011. And he said, yes, ideas can be punished. I was so outraged by that, I wrote a whole article. And I can't remember. In that article, I have written that, dear editor, do not change even one word. If there is a midnight knock on my door, I am prepared to go this, because that is sacrosanct. People don't realize how important free speech is. For their mental sanity, for their personal individuality. Everything. Yeah. Everything. For the evolution of a country, for the movement of a culture. It is the cornerstone. It is not just the cornerstone, यार. जैसे right to life कहते हैं, मेरे लिए तो वो, this is right to freedom of speech should be a fundamental right. Right. And so sometimes, I get really bothered by Twitter trolls who sort of malign the right of freedom of speech. Oh, it comes with its limits, and neither do you have any jurisprudence understanding of where it comes from, nor do you truly understand even the idea of natural law उस केस में कि कितना important है for somebody to progress to have free speech. But the point I was trying to make, sir, is because I've completely admired it, I'm very fond of the idea that you think that both these sort of evangelical legal manifestations be that are, they are to be challenged in at least some way. But, and I was again not hoping to go here, but I'll ask you this. But we Indians are very strange people. We either ban things or make them compulsory. We either glorify them or completely antagonize them. मतलब पूरा extreme. हाँ. कि अब इसको बैन कर दिया, उसको बैन कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, या उसको कंपलसरी कर दिया, उसको कंपलसरी कर दिया. Both things are extreme.
मैं ये नहीं कह रहा कि there are some things that affect the other person that need to be made compulsory. For that, I'm absolutely set. For example, vaccination. If you don't vaccinate the whole population for a particular disease, then you are creating pools where those diseases can prosper and they will come back to bite you. With resistance. So it makes total sense. Right. To make some things compulsory. So vaccination for polio is compulsory because if you don't eradicate it, it'll keep on happening, because the virus is there. So for example, smallpox. Right. It was compulsory. Now, wearing a helmet is compulsory because ठीक आप कह भाई मेरा सर है, मैं मेरा बन किया मैं नहीं पहनूंगा. तो भाई फिर आप जब आपको चोट लगेगी या हेड इंजरी होगी तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मत जाना, ट्रीटमेंट मत करवाना. Right. If you are okay with that, then you can do whatever you want. Everything is based on cost-benefit analysis. Right. I think so. One should be open, broad, open-minded, and liberal. But the least liberal are these guys who call themselves as liberals. Yeah. To bring us back, the idea कि ये जो evangelism in law दोनों साइड से रुकनी चाहिए. Yes. I agree. I'm a very, maybe because I was raised in America to some extent, मैं बड़ा freedom loving इंसान हूँ. But that begs the question, sir, is that not substantively what secularism is? क्योंकि यही तो बात है ना कि आप स्टेट और चर्च को सेपरेट कर रहे हो. Yes. आप द रिलीजियस मैनिफेस्टेशन और जो लीगल मैनिफेस्टेशन या पॉलिसी मैनिफेस्टेशन है उसको सेपरेट कर रहे हो. Correct. आर यू नॉट फॉर दैट देन? I'm totally for it. But you are not okay with it being in the constitution. Yeah, what is your stand on secularism? Point is, we are not a secular country. यही तो मैं कह रहा हूँ भाई. I want us to be a secular country where there is a total demarcation between religion and state. Religion has nothing to do with state, and the state has nothing to do with religion. That's perfect for me. I say it, and I've said it publicly. Problem is, we are not. We are plural. Why else is the state not just touching religion, is so entrenched in it that it is controlling Hindu places of worship, that it is setting salaries for imam, maulvis and priests, that it is having iftar parties, that it is having Hajj subsidies. Why? What business is it of the state to do all dabble in religion, yaar? Right. Also, what I say is we are not secular. So first questions first. जो हमारे preamble में secular word लिखा है, you have nothing against that because Absolutely not. You are fine. No, with yaar. it. Yes. हाँ, ठीक है. तो we are fine with that. I have problem with socialism जो लिखा हुआ है. Socialism is more your problem. Then the next step is, and I agree by the way. Anyway, but the next step is then your claim with Hindus in Hindu Rashtra, the Yes. tagline reads state-sponsored apartheid. Yes. कि जो ये laws हैं, अब जो हैं, Yes. एक तो वो प्लूरल लॉ है, सेक्युलर नहीं है, और जो अब वो हैं उससे हो क्या रहा है कि तुमने हिंदूज को मलाइन कर रखा है. Yes. नाउ द इंटरेस्टिंग थिंग हियर सर फॉर मी, आपने जो ये सेंटिमेंट क्राफ्ट किया है, ये जो आर्ग्यूमेंट क्राफ्ट किया अपनी इस बुक में, आई थिंक ये सड़क पे चलते हुए मेजॉरिटी हिंदूज का सेंटिमेंट है. If I can say, I was not expecting this to be the case, Right. frankly. But somehow it has touched a chord. It has. Especially the byline, because लोगों को अब ये नज़र में आने लगा है. So by the way, I think now I talked to my publisher, wonderful man Praveen. 63,000 copies have been sold in 6 months. It'll be 70 by the end of this. Guys, come on. And this is a country where you sell 5,000 copies, you were declared a bestseller. So 63,000 6 months. And this is me always having the belief कि आज की जनरेशन पढ़ती नहीं है, तो मुझे प्लीज आप माफ करें, जो इंक्लूडिंग माई सन. आई अपोलोजाइज. 100 पेज की बहुत गालियां दी है मैंने उनको. अच्छा हाँ, ये हो सकता है. It's a very पतली बुक ना, and it's like a single read, एक फ्लाइट में पढ़ लो. Yeah. But I'll tell you why I'm bringing this up. और ये वाला पार्ट मैं चाहता हूँ स्पेशली हम हिंदी में करें. बिकॉज ये जो सेंटिमेंट लोगों का है, जैसे फॉर इंस्टेंस मेरे जो ड्राइवर है ना, मैंने अभी एक अनुज धर करके हैं, आप जानते हैं, उनसे बात करी, तो मेरे पास मेरे ड्राइवर आए, कहते प्रखर भाई आपने बहुत अच्छा किया और ये एक सेंटिमेंट है हमारे अंदर भी, आपने हमें रिप्रेजेंट किया. यही मैं बस में अगर कभी बैठ जाऊं, मैं अभी विपश्यना में था, वहां बहुत लोग थे, मेरे को ऐसे बहुत कॉमन इंडियन आदमी मिलता है जो इन चीज़ों के बारे में बात करना चाहता है, बट मैंने देखा है वो स्ट्रगल करता है विद वर्ड्स. एंड सो आई कुड गिव द समरी ऑफ योर बुक, बट वो ना जस्टिफाई नहीं होगा. मैं चाहता हूँ आप हिंदी में, यू टेक 10 मिनट्स, आपको 15 मिनट चाहिए, 5 मिनट चाहिए, आप इस पूरे सेंटिमेंट को कि किस तरीके से एक हिंदू अपनी आवाज़ उठाए अगेंस्ट द मलाइनमेंट दैट यू थिंक इंडिया में हो रहा है, उसको स्टेट कर दो. हाँ, तो पहले तो देखिए, ये जो पूरा फ्रेज है हिंदूज इन हिंदू राष्ट्र, दिस इज अ काइंड ऑफ अ पैरोडी, बिकॉज 2014 हिंदी में, हाँ, ये एक तरह से एक शब्दों का खेल है. सॉरी, मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं. कोई बात नहीं सर, हम देख लेंगे. सो एक शब्दों का खेल है, बिकॉज 2014 से
ये लेफ्टिस्ट और दरबारीज ये कह रहे हैं अरे हम तो फाशिस्ट हिंदू राष्ट्र में आ गए भाई, अब तो हमने डेमोक्रेसी छोड़ दी, मर चुकी है डेमोक्रेसी, ये तो हिंदुत्ववादी आ गए हैं। और ये तो मेरा ये था, ये हिंदूज जो हैं, ये स्थिति है हिंदुओं की हिंदू राष्ट्र में, जो आप कह रहे हो हिंदू राष्ट्र है। 8 रीजंस मैंने दिए हैं। अच्छा, और ये मैंने खुद बोला है प्रीफेस में भी कि प्रीफेस की हिंदी भूल गया, प्रीफेस बहुत है। हाँ, बुक के पहले बुक के पहले, हाँ, मतलब इंट्रोड्यूस बुक को इंट्रोड्यूस करने के लिए। हालांकि साई दीपक और विक्रम संपत ने दोनों ने दिया हुआ है। आई एम वेरी ग्रेटफुल, बहुत धन्यवाद उनका। लेकिन मैंने कहा कि देखो ये डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई इंडियन नहीं है जिसके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ। कोई इंडियन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्धिस्ट, सब आदमी, सब कभी ना कभी किसी ना किसी दिन उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। उनको अच्छा नहीं लगा, वो लड़े या चुप रहे, कुछ भी हुआ, हर भारतीय के साथ हुआ है। ये किताब उसके लिए नहीं है, उसके लिए तो लोगों ने पता नहीं थीसिस लिखे होंगे 1000 पेज, उसका नहीं है। तो मैं इसको एक तरह से वाटर टाइट बनाना चाहता था। जो डिस्क्रिमिनेशन लीगली, कॉन्स्टिट्यूशनली, सोशली, एजुकेशनली सिर्फ हिंदुओं के साथ हुआ है, इवन जुडिशली, 2 चैप्टर्स तो सिर्फ जुडिशरी वाले हैं उस पर, हाँ, स्पेसिफिकली जुडिशरी, ठीक है, वो डिस्कस कर रहे थे। फिर मैंने ये भी ओपन लिखा, आई एम वेरी ओपन, अगर आप मुझे गलत साबित करो कि मुस्लिम्स के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनली, मुझे बता दो, मैं इंक्लूड कर दूंगा, नेक्स्ट किताब उस पर लिखूंगा। अगर सिखों के साथ, सिर्फ हिंदुओं के साथ ये क्यों हो रहा है? तो इसीलिए ये अब अपार्थाइड का क्या मतलब होता है, जो साउथ अफ्रीका में होता था, ऐसा नहीं था कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा था, स्टेट ने लीगलाइज किया हुआ था, लॉ में डिस्क्रिमिनेशन लॉ में था, हाँ। लॉ में था। अब आप मुझे बताइए, हमारे देश में एक ऐसा लॉ है जो कि कहता है कि अगर किसी हिंदू को लगता है कि भाई उसका मंदिर तोड़ा गया, उसके ऊपर मस्जिद बनाई गई या कोई और प्लेस ऑफ वर्शिप बनाया गया, जो कि दिख रहा है आपको, ज्ञानव्यापी में दिख रहा है, मथुरा में दिख रहा है, बाबरी मस्जिद में तो दिख नहीं रहा था, तो आप, कोई हिंदू कोर्ट भी नहीं जा सकता ये कहने की माय लॉर्ड ये मुझे वापस चाहिए, कोर्ट भी नहीं जा सकता। अब आप बताइए डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? अगर कहीं पे इनजस्टिस हो रहा है, पहली मेरे उसमें पहला सेंटेंस किसी किताब, डेमोक्रेसी किताब में होना चाहिए कि एक आदमी को ये राइट होनी चाहिए कि वो जस्टिस सीख करने कोर्ट जा चुके। ये आप मानते हैं? बिल्कुल। वरना डेमोक्रेसी है ही नहीं, हाँ, वरना तो ऑटोक्रेसी हो गई है। हाँ। तो इस डेमोक्रेसी में ये लॉ है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जो कि हिंदुओं को बार करता है कि आप कोर्ट भी नहीं जा सकते मांगने के लिए। और ये लॉ सुप्रीम कोर्ट ने रेटिफाई किया दोबारा 2019 के अयोध्या जजमेंट में। अब ये इज दिस नॉट डिस्क्रिमिनेशन? आप ये बताइए, कॉन्स्टिट्यूशन लीगल नहीं है डिस्क्रिमिनेशन? तो जब अब ये मुस्लिम्स के साथ है, नहीं है, तो ये क्या चल रहा है हमारे देश में? नहीं, तो स्पेसिफिकली प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहता है हिंदूज ही नहीं कर सकते भाई। आप मुझे कोई डिफैक्टो तो हिंदूज है ना, हाँ। वरना आप मुझे बताइए कि कोई ऐसा प्लेस, और सिर्फ राम जन्मभूमि को एक्सेप्शन दिया था उन्होंने, क्योंकि वो 47 से पहले से चल रहा है, ये था ना आर्ग्यूमेंट शायद। नहीं उनका, क्योंकि राम जन्मभूमि का केस चल रहा था तब, कॉन्ट्रोवर्सी, उन्होंने कहा चलो इसको सॉल्व कर देते हैं, बाकी सारों को भूल जा। क्यों भाई? अभी ये बीच में ये केस चल रहा था कि चलो 3 दे दो, कि काशी दे दो, मथुरा दे दो और राम जन्मभूमि। क्यों भाई? ये सब धनिया और हरी मिर्च है क्या कि चलो ये डाल दिया वो डाल दिया? मतलब जस्टिस ऐसे होता है या जस्टिस फर्स्ट प्रिंसिपल से होता है? अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जो ये पलायन हुआ, एक्सोडस जिसे कहते हैं, 1990 में कश्मीरी हिंदूज का, और अभी तक तो सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार कह रखा है कि हम वो केस, एट्रोसिटीज़ के केस है, वो ओपन भी नहीं होने देंगे अगेंस्ट कश्मीरी हिंदूज। ये जुडिशरी ने कह रखा है कि हम नहीं खोलेंगे, नहीं खोल रहे वो, क्योंकि टू मच टाइम, बहुत समय जा चुका है। ये जुडिशरी ने कहा है, 1 बार नहीं 2 बार सुप्रीम कोर्ट ने। और ये जब ये कहा था, उसके 6 महीने बाद 1984 में जो सिखों के अगेंस्ट हुआ था, उसके लिए एसआईटी सुप्रीम कोर्ट ने ठहराई। वो पहले हुआ था, जबकि वो 7 साल पहले हुआ था, 6 साल पहले हुआ था। अब ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। लेकिन अगर आप उसको भी रहने दीजिए, मैं फर्स्ट प्रिंसिपल की बात कर रहा था। अगर आप कहेंगे चलिए 30,000 कश्मीरी हिंदूज के केसेस हैं एट्रोसिटीज़ के, हम ऐसा करते हैं, हम गिरिजा टीकू वाला ले लेते हैं, बीके गंजू वाला ले लेते हैं, और एक कर्नल आई थिंक संदीप है, उनका वो ले लेते हैं, 3 केस सॉल्व कर देते हैं, ओपन कर देते हैं, कश्मीरी हिंदूज खुश होना चाहिए। कभी ऐसे जस्टिस होता है कि बाकी 27,997 केसेस भूल जाओ, हमने ये 3 केस सॉल्व कर दिए, खुश हो जाओ?
Have you ever, मतलब ऐसे, is this what justice? ये तो injustice हुआ ना। बच्चों की तरह ट्रीट कर रहे हैं। क्या कर रहे हो कि आप? तुम छोटा वाला टॉय ले लो, बड़ा वाला वो छोड़ दो। तो ऐसा, अच्छा चलो 3 से खुश नहीं हो, चलो 4 केस हम ओपन कर देते हैं, चलो 5। अभी बीच में एक ऐसे कह रहे थे चलो यार 2 और डाल दिए ऐसे। What's going on here यार? भाई कई ऐसे लोग हैं जिनके लिए कुलदेव और कुल देवता राम लल्ला से ज्यादा प्रेशियस है। इट इज अ फैक्ट। फैमिली चली आ रही है 700 साल से, आप वर्शिप कर रहे हैं, और आप देखिए कि भाई जो अपने गंदे पैर लेके वहां पे जा रहा है शिवलिंग के, उसको उसने वजू खाना बना रखा है, आप ऑफेंड नहीं होंगे? आप ये, मैं ये नहीं कह रहा कि आप इलीगली लीजिए, जबकि लेफ्ट ये करने में माहिर है। बाकी सारी जगह जहाँ पे हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस हुए हैं, जैसे कि कॉन्गो में हुआ तो किंग लियोपोल्ड ने किया, बेल्जियंस ने बहुत एट्रोसिटीज़ करी कॉन्गो में, तो किंग लियोपोल्ड का स्टैचू गिराया, वो इलीगली गिराया, कोई सैंक्शन थोड़ा ना था उसका। लेफ्ट चिल्ला के कहा वाह बहुत ज़बरदस्त चीज़ें करी, बहुत करी। लेकिन जब इंडिया में ऐसी चीज़ कहो कि आप करेक्ट करो हिस्टोरिक, तब लेफ्ट कहता है कि नहीं ये तो लीगली भी अलाउ नहीं करता। तो ये दोहरा मापदंड क्यों भाई? ये तो डिस्क्रिमिनेशन है ना। और ऐसे आप बहुत सारे और केसेस ले लीजिए। तो ये किताब वो है जो कॉन्स्टिट्यूशनली और लीगली डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। आपने 8 एग्जाम्पल लिए हैं। एक तो किस तरीके से हिंदू टेम्पल्स जो हैं वो सरकार के कंट्रोल में है, हिंदुओं के कंट्रोल में नहीं है, और उसके कॉन्सिक्वेंसेज हम सबरीमला एटसेट्रा और इन सब चीज़ों में देखते हैं। उसके देखो, अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कहने जा रहा हूँ प्रखर। उसके कॉन्सिक्वेंसेज ये आपको भी, अब आपने सोचा भी नहीं, क्योंकि मुझे दिख गया आपने सोचा नहीं। मैंने भी 6 महीने पहले तक सोचा नहीं था ये। इसके कॉन्सिक्वेंसेज मैं बताता हूँ। लोग कहें कि अरे यार गवर्नमेंट ने कंट्रोल किया हुआ है ना टेम्पल, ठीक है, क्या प्रॉब्लम है यार, जियो। सारे टेम्पल्स तो इंडिया के थोड़ा ना किए हुए हैं, 100,000 1 लाख किए हुए हैं, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? कई लोग ऐसा कहना शुरू कर दिया है। लॉन्ग टर्म में आपको इफेक्ट बताता हूँ क्या होगा। अभी आपने पंजाब की बात करी थी, आप कन्वर्जन की बात कर रहे थे, इंसेंटिवाइज करके कन्वर्जन हो रहा है। अब इसमें देखो, मैं ना, जो लोग डिराइजिवली भी बोलते हैं कि राइस बैग नहीं कहते क्रिश्चियन को, राइस बैग, मैं कभी डिराइजिव नहीं हूँ। मैं कहता हूँ उसने अगर चावल की बोरी ली है ना, तो उसने अच्छा किया ये, क्योंकि उसने अपनी बीवी को बचाया भूखमरी से, अपने बच्चों को बचाया, या बीवी ने अगर लिया तो अपने हस्बैंड को बचाया। अगर उसने कहीं जॉब लिया मिशनरी चर्च में काम करने का, क्यों नहीं लेगा यार? दी ऑल्टरनेटिव इज कि वो मर रहा है। हाँ, वो अपने बच्चों को स्कूल क्यों नहीं भेजेगा? बिल्कुल है। अपने बीवी को या बीवी अपने हस्बैंड को हॉस्पिटल क्यों नहीं भेजेगी? बिल्कुल। दी ऑल्टरनेटिव इज कि हाँ मैं कन्वर्ट नहीं होता लेकिन वो मर जाए। हाँ, कोई पागल ही होगा जो करेगा। बिल्कुल सही बात। अब वो क्यों हो रहा है? क्योंकि दे हैव द मनी, चर्चेज हैव द मनी, मॉस्क्स हैव द मनी टू मेक हॉस्पिटल्स, टू मेक स्कूल्स, टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग, इंसेंटिवाइज। अगर हिंदू टेम्पल्स के पास अपना पैसा हो, वो ऐसे हजारों हॉस्पिटल खड़े कर दें। ऐसे हजार तो लोग कन्वर्ट नहीं करेंगे, कहेंगे भाई मैं क्रिश्चियन नहीं बनूंगा क्योंकि मेरा यहाँ पे हिंदू हॉस्पिटल है। फिर रिलीजन इन्वॉल्व ही नहीं होगा इस इक्वेशन में। भूखमरी सोचा था? नहीं, बिल्कुल मतलब ही नहीं था सर। अब ये देखिए, ये एक कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है जो कि एक न्यूएंस है। जो कि गवर्नमेंट को भी समझ में नहीं आ रहा कि भाई आप शॉर्ट टर्म सोच रहे हो, थोड़ा सा आपने कंट्रोल ले लिया हिंदू टेम्पल्स का। 20-30 साल तक आप किसी हिंदू टेम्पल को कोई स्कूल या हॉस्पिटल रोकने से मना कर रहे हो, खोलने से। हाँ, मना इन द सेंस कि पैसा नहीं है उनके पास तो क्यों खोल के करेंगे, और दैट इज ड्राइविंग हिंदूज टू लीव द फोल्ड। दैट इज बेसिकली मेकिंग एक अनएथिकल लाइन ऑफ कन्वर्जन मच मोर इजी। अब आपको समझ में आया ये? हाँ। ये एक न्यूएंस है जो कि मैंने भी इस एंगल में सोचा ही नहीं था। फिर मैंने सोचा कि यार ये जो तिरुपति है, ये दिल्ली में तिरुपति ट्रस्ट ने एक कॉलेज खोला हुआ है, श्री वेंकटेश्वरा। वहाँ पे भी हिंदुओं के लिए रिजर्वेशन नहीं है, जबकि AMU वगैरह अभी देखो कैसे लड़ रहे हैं कि हमें सिर्फ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन बनाना चाहिए, वो जो भी है। ऐसे तिरुपति 1000 खोल सकता है स्कूल्स, क्योंकि उनके पास बहुत पैसे हैं। हाँ। इट इज द मनी इट अर्न्स इज मोर देन पॉसिबली द GDP ऑफ स्मॉल कंट्रीज। या राइट भाई अभी लेकिन ये हम गवर्नमेंट सोचती नहीं है इस बारे में। नाउ दैट यू आर सेइंग दिस, मैं तो सोच रहा हूँ सर, सेंटिमेंटली अगर मैं एज अ हिंदू डोनेट करता हूँ टेम्पल्स में, तो मैं जिस कॉज के लिए डोनेट कर रहा हूँ वो कॉज भी टोटली, मतलब मैं तो फिर सरकार की जेब में पैसा डाल रहा हूँ। अब एक बात बताओ, आप जब डोनेट करते हो, क्या आप ये दिमाग में सोचते हो कि यार जो मेरे बगल में जो हिंदू खड़ा है, मैं इसलिए डोनेट कर रहा हूँ, भगवान से प्रार्थना है कि ये अगले साल क्रिश्चियन होगा? ये कभी सोचा आपने? या फिर मैं, मतलब मेरा जो सेंटिमेंट है उसके पीछे, वो तो कंप्लीटली वाइप्ड अवे है ना। सो बट हु इज थिंकिंग अबाउट दिस? यू टेल मी। अभी मद्रास हाई कोर्ट में तमिलनाडु गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है कि ऐसे 12,000, इनफैक्ट 11,999, फैक्ट चेक करिए, ऐसे टेम्पल्स हैं जिन पे दिन में एक बार की पूजा करने का पैसा नहीं है। ये सिचुएशन है।
यू टॉक टू टी आर रमेश जो कि लड़ रहे हैं, कभी भी जेल जा सकते हैं वो। हाँ, जो टेम्पल लैंड कंट्रोल किया हुआ है, गवर्नमेंट रेंट सेट करती है, वो कह रहे हैं 6,000 करोड़ होना चाहिए, आना चाहिए रेंट 1 साल का। तमिलनाडु के सारे टेम्पल जो कंट्रोल हैं, आता कितना है? 58 करोड़, 1% भी नहीं आता। तो ये जो 5,900, ये जो 90 करोड़, जो जितने भी 60 करोड़ जो लूज कर रहे हैं, कितने स्कूल और टेम्पल्स हॉस्पिटल बन सकते हैं? कितने हिंदूज को बचा सकते हैं भुखमरी से, खाना दे सकते हैं? कितनी कैंटीन्स बन सकती हैं? हिंदू क्यों छोड़ेगा फोल्ड? वो कहेगा मैं मिशनरी हॉस्पिटल में अपना इलाज क्यों कराऊं, मेरे को तो ये हिंदू हॉस्पिटल में इलाज मिल रहा है। मतलब मेरे लिए तो वो एक एक्सोजेनस वेरिएबल, एक एक्सटर्नल फोर्स खत्म ही होगी ना। अब हम लोग और रीजनेबल बात कर सकते हैं। आई एम नेवर अगेंस्ट कन्वर्जन, आई एम नेवर अगेन प्रोसिलेटाइजेशन, बिकॉज ये एक रिलीजन, एक थॉट है मेरे लिए। अगर मैं लोगों को प्रीच करूं एथिज्म या डार्विनियन एवोल्यूशन या साइंस, तो कोई और रिलीजन क्यों ना प्रीच करे? प्रॉब्लम आती है जब आप कन्वर्ट करते हो कोर्स करके, पैसे दे के कन्वर्ट करते हो। राइट, कहते हो कि अरे यार ऐसा है, तू बिलीवर है बट यू आर वेरी पुअर, तू साइंस, तू एथिस्ट बन जा, मैं तेरे बीवी बच्चों को ये कर दूंगा। दैट इज रॉन्ग एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। आपने तो पंजाब का एग्जांपल लिया, आप आंध्रा जाइए, यू विल बी शिवरिंग इन योर बूट्स। आई एम नॉट जोकिंग। क्योंकि इंसेंटिव वहां पे ये नहीं है कि मैं जीसस में या मोहम्मद में मानता हूं। वहां इंसेंटिव ये है कि मेरे को फाइनेंशियल सेफ्टी मिल रही है। Correct. और उस प्रोसेस में आप आदमी का कल्चर जो है वो इरोड कर रहे हो। टोटली। अब मैंने वो देखी, ये 2 तरह का वार है। एक तो आप कन्वर्ट हो गए, तो आपने हिंदुइज्म छोड़ दिया, वो अलग से आप मान लीजिए, चलिए उसको भी मैं नेगेट कर दिया, बिकॉज 1 रिलीजन, 2 रिलीजन, 3 रिलीजन एथीस्ट के लिए बराबर ही है, एक तरह से बराबर है। लेकिन अब आप ऐसे फोल्ड में आ गए जहाँ पे ऐसे ड्रैकोनियन मेजर्स हैं, आपकी वे ऑफ लाइफ ऐसी चेंज होके रहेगी। आपने देखा कर्नाटका में लोग ये भूल गए कि भैया स्कूल यूनिफॉर्म का क्या मतलब होता है, कि सब चीज़ आपने एक यूनिफॉर्म पहनी हुई है। वो कह रहे कि इसमें बुर्का अलाउ करो। इतने एक्टिविस्ट लड़ रहे हैं इसके लिए, सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव्स। क्यों भाई? यूनिफॉर्म का। अब कल को अगर कोई स्विमर कहे कि मैं स्विमिंग ट्रंक नहीं पहनूंगी या जो भी है, मैं बुर्के में स्विमिंग करूंगी, विल दैट बी अलाउड? देयर आर सम रूल्स भाई, वरना आप अपना रिलीजियस स्कूल बनाइए, उसमें आप कहिए सब बुर्का में आएंगे। लेकिन किसी स्कूल ने, अपना यूनिवर्सिटी ने, जो भी है, अपने सेट ऑफ रूल्स बनाए हुए हैं। They have to follow those rules. Slowly that way of life is going to be eradicated. ये जो that is the worry. जो बुर्का वाला पॉइंट है सर, यहाँ पे द कॉन्फ्लिक्ट इज, एक तो रिलीजियस मैंडेट, पर इसमें बाय द वे आई वाज अगेंस्ट द बुर्का बैन। यू वर अगेंस्ट? yes यू वर सेइंग कि अगर रिलीजन ऐसा कहता है तो होने दो। yes बिकॉज मैं बताता हूँ इसका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रीजन। हाँ, इसका रीजन ये था कि यू आर स्पेयरिंग द फंडामेंटलिस्ट, snaring the fundamentalist and sparing the fundamentals. मतलब जो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, उनके पीछे आप जाते हो, लेकिन वो एक्सट्रीमिस्ट कुछ फंडामेंटल्स फॉलो कर रहे हैं, बिल्कुल, उनसे आपको डर लगता है, वो आप छोड़ देते हो। तो अब जब कुरान में कहा है ऐसे ड्रैकोनियन डिक्टेट्स हैं जो आपको ड्रैकोनियन लगते हैं कि ये पहनो, ऐसे ड्रेस करो, उसको आप कहोगे कि नहीं यार वो मैं उसको बोलूंगा भी नहीं। और आनंद जब ये वर्सेस कोट करता है तो ये बिगट है। तो भाई जो सब वर्सेस कोट करते हैं वो बिगट हो गए क्या? तो वर्सेस मैं कोट कर रहा हूँ, आपको प्रॉब्लम वर्सेस में लग रही है या मुझ में लग रही है? ठीक। लेकिन जो वो फॉलो कर रहा है उसको तो जाकिर नायक इज द प्रॉब्लम। उसको अभी बहुत सारे हिंदूज भी ये कहते हैं कि जाकिर नायक को पकड़ो, उसको अरेस्ट करो। भाई वो क्या कर रहा है? वो तो मेरा गुरु है, उसने मेरी आंखें खोली हैं भाई, उसकी क्या गलती है यार? वो तो कोट कर रहा है वर्सेस। अगर वर्सेस कह रहे हैं कि इस आदमी को मारो, हिंदूज आर द वर्स्ट ऑफ क्रीचर्स, दिस थिंग, इनको जला दो, राख कर दो, ये कर दो, जाकिर नायक ने थोड़ा कहा है ये। ही इज अ मीडियम। कल को अगर मैं कहूं कि आई बिलीव इन द डार्विनियन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बिकॉज आई हैव रेड ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, तो एम आई चार्ल्स डार्विन? नहीं, आई एम कोटिंग, आई एम मीडियम, आई एम अ मैसेंजर, राइट। तो प्रॉब्लम बुर्का बैन में ये थी कि आप मैसेंजर्स के पीछे पड़ गए थे कि ये देखो ये फंडामेंटलिस्ट हैं, एक्सट्रीमिस्ट हैं। आपने वो छोड़ दिया जो कि वो कह रहे हैं हमारी क्या गलती है भाई? यू आर नॉट प्रिपेयर टू फाइंड फॉल्ट इन द बुक दैट इज टेलिंग अस व्हाट टू डू। राइट। सो आप सोर्स पे नहीं जा रहे। सोर्स पे नहीं जा रहे। किसी की हिम्मत है सोर्स पे? एक कलकत्ता कुरान पिटीशन आई थी, आप उस पर पढ़िएगा। जेल कर दिया था लोगों को जिन्होंने कहा था सर ये कुछ वर्सेस हैं, ये हमें ये सब कहती है, इनके बारे में क्या कहना चाहिए। हाई कोर्ट से पूछा था,
that person was imprisoned. अभी एक वो थे शिया बोर्ड के कोई चीफ रिजवी थे या कोई थे, उन्होंने कहा 23 ऐसी बहुत ही वायलेंट वर्सेस हैं, ये हट जानी चाहिए. वो तो नहीं हटी, ये हट गए, इनका नाम अब जोगिंदर हो गया है. ये डर है. बट इन फॉर्म सर, अगर मैं इसको इस आर्ग्यूमेंट को देखूं जहां पे मैं सोर्स और मैसेंजर वाली बात समझ गया. फॉर पीपल हु डू नॉट अंडरस्टैंड, हम यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि आप सोर्स को तो क्वेश्चन कर नहीं रहे, जो लोग उस सोर्स हिम्मत नहीं है. हाँ, क्योंकि जो लोग उस सोर्स को लॉजिकली फॉलो कर रहे हैं, दे आर कंसिस्टेंट विद दैट सोर्स, उनके पीछे भाग रहे हो और उनको तुम और ड्राइव करोगे फंडामेंटलिज्म की तरफ, तो वो कोई प्रॉब्लम की सोल्यूशन बना नहीं. जस्ट टू इंटरप्ट, मेरे साथ ये लाइव जीता जाता एग्जाम्पल हुआ. अभी बीच में बैंगलोर में ब्लास्फेमी केस हुआ था 3-4 साल पहले या 3 साल पहले. तो वहाँ पे एक दलित ने परपोर्टेडली कुछ कहा था, उसके अगेंस्ट बहुत सारे मुस्लिम्स मॉब आ गए, जला दिया, सब वो कर दिया. सो आई कोटेड दी सो कॉल्ड ब्लास्फेमी वर्स फ्रॉम कुरान, जिसमें क्या रखा है कि इफ़ यू अब्यूज अल्लाह और हिज मैसेंजर देन हेल हैथ नो फ्यूरी, मतलब पूरा वो कर देंगे. दैट्स कॉल्ड दी सो कॉल्ड ब्लास्फेमी वर्स. आई कोटेड दैट ऑन ट्विटर. आई ट्वीटेड दैट tweet is still there. Why is that still there? Because that's a quote from the holy book. Twitter banned me for 2 weeks. I remember that ban. Yes. Yeah. So they asked me, I said, why have you banned me? They said, because it is hate speech. तो मैंने कहा ये पब्लिकली बोलो सालों कि ये जो कोटेड वर्स है ये हेट स्पीच है, ताकि तुम्हें कल कोर्ट तो ले जा सकूं मैं इस पे. हाँ, तो तब 4 नींबू डालने पे दूध भी इतना नहीं फटता जितनी उनकी फटी. They immediately, sorry about that. नहीं. I apologize to. मैं इमोशन में जोश में आ गया था. बहुत सही किया सर, आप जोश में ही आओ. पिटवाओगे भाई. नहीं, आप ट्विटर वालों की बात कर रहे थे. That instant they unblocked me. क्योंकि उन्होंने कहा कि यार ये तो 1.8 billion Muslims will be after our skin. Right. If we say that this is hate speech. Right. तो डरा कौन है बताओ, मैं या ट्विटर? तो अब ये हम उस ऐसे देश में रह रहे हैं जहां पे ये पैल्पेबल डर है लोगों को. The people, Nupur quoted the scriptures. The people who said I stand with Nupur, they were beheaded. मतलब अब सिचुएशन ऐसी है कि आपको behead कर रहे हैं, ये नहीं कि आपने जो बोला, behead इसलिए कर रहे हैं कि आप जिसके साथ हैं, you are just saying I stand with her. कन्हैया लाल जी just said I stand with Nupur. Beheaded online. ठीक है सर, देयर इज एन इक्विवेलेंस. मैं एक टाइप का एनालॉजी, एक टाइप की सिमिलैरिटी ड्रॉ करना चाहूँगा. ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि इस केस में द प्रोग्रेसिव सोर्स पे जाते हुए, मैसेंजर पे नहीं सोर्स पे जाते हुए, कि एक औरत का राइट टू ड्रेस शुड सुपरसीड अ रिलीजन्स मैंडेट टू डिक्टेट हर ड्रेसिंग. यस, ऑफ कोर्स. राइट. तो हम यहाँ पे द कॉन्फ्लिक्ट इज बिटवीन एन इंडिविजुअल्स राइट एंड द रिलीजियस मैंडेट. इसका एक बहुत सिमिलर, आई स्लाइटली डिसएग्री विद दैट. या What if the woman says, I believe in the religious mandate? तो फिर ठीक है, फिर तो उसका राइट है ना, उसका राइट है. लाइक वी आर सेइंग दैट द राइट रेस्ट्स विद द वुमन. राइट रेस्ट विद द वुमन. राइट. बट इसका भी एक्सेप्शन है. हाँ, इसका एक्सेप्शन है. कल को अगर रिलीजन कहे कि विमेन शुड ड्रेस विद अ चेन एंड एन आयरन बॉल अटैच टू इट, राइट, तो वो आप वुड यू लाइक विमेन टू बी वॉकिंग लाइक 1 foot in shackles? सो वी आर सेइंग कि वो तो एक बिल्कुल ही एग्रीजियस बात होगी, उसको तो हटाई दो, तो विमेन का राइट सुपरसीड ही अब है. एक और इस पे आया, देखो. ये होता है कि जैसे आप ना, अब यू प्लेइंग द डेविल्स एडवोकेट. राइट. मैं कहूंगा मेरा एक प्लस पॉइंट सिर्फ इतना ही है कि मैं अपने आप ये चीजें सोचता रहता हूँ. हाँ. ताकि किसी और को मौका ना दूं. ठीक. यार अरे यार मैं तो पकड़ा गया. नहीं, मैं खुद अपने आप को पकड़ लेता हूँ. ठीक. तो अब ये सब्जेक्टिव नहीं हो गया. आपको लगा कि एक चेन और मेटल बॉल इज मच मोर ड्रैकोनियन देन अ बुर्का. राइट. और वो भी सब्जेक्टिव हो सकता है. वो सब्जेक्टिव है यार, मैं मानता हूं. दैट्स ऑल. मैं तो दूसरी तरफ जा रहा हूं सर. मैं बात कर रहा हूं, हम जो सबरीमला का फंडामेंटल है, वो यही नहीं है कि वुमेन्स राइट टू एंटर अ टेंपल शुड सुपरसीड अ रिलीजियस मैंडेट, की एक टाइप की वुमेन एक टाइप के टाइम पे एंटर नहीं कर सकती. वहां पे हम सेम प्रिंसिपल क्यों नहीं लगाते? व्हाट डू यू थिंक? सो एक तो पहली बात ये, मुझे जेसाई के पूरा जजमेंट पढ़ने से, उससे इंटरैक्ट करने से ये इन्फॉर्मेशन मिली. सो आई एम थैंकफुल टू हिम. शबरीमला का जो केस था, इट वाज नॉट अ केस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. सुप्रीम कोर्ट ब्लंडर्ड. इट वाज अ केस ऑफ परसीव्ड डिस्क्रिमिनेशन, एंड आई विल टेल यू व्हाई. देयर आर मेनी अयप्पा टेम्पल्स वेयर दिस डिक्टेट डज नॉट देयर. ठीक है. ओनली इन दिस वेयर द लॉर्ड इज सेलिब्रेट एंड ही सेज women of a particular age group who are menstruating should not come. That is his diktat. ठीक है. अगर आप उसको भी नेगेट कर दो कि दैट इज ऑल्सो प्रमोटिंग डिस्क्रिमिनेशन, सो देर आर मेनी हिंदू टेम्पल्स वेयर मेन आर नॉट अलाउड टू एंटर.
उसको भी हटा दो। तो क्यों अब जैसे आपके पास 2 केस आ गए सडनली, ऐसे हिंदू टेम्पल्स हैं जहां पे विमेन आर नॉट अलाउड टू एंटर, ऐसे हिंदू टेम्पल्स हैं जहां पे मेन आर नॉट अलाउड टू एंटर। तो इज दिस, वुड यू कॉल दिस डिस्क्रिमिनेशन? वेल आई सी द पॉइंट कि हमारी what I mean? प्लुरैलिटी में फ्रीडम अभी भी एक्सेसिबल है। ऐसा नहीं है कि फ्रीडम पे ओवरऑल बैन है, एक कंप्लीट या एब्सोल्यूट बैन ऑन फ्रीडम नहीं है, कंडीशनल है, लिमिटेड है, कंटेक्चुअल है। बट अगर ऐसा होता कि देर आर नो टेम्पल्स वेयर मेन कैन नॉट एंटर, देन यू वुड माइट हैव अ पॉइंट कि व्हाई आर यू मेकिंग विमेन डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट विमेन। अच्छा, एक तो ये पॉइंट हो गई, तो ये मेरे लिए परसीव डिस्क्रिमिनेशन है। बिकॉज अगर ऐसे टेम्पल्स हैं, और ये हैं, मैंने कोट, इस बुक में मैंने कोट किए हुए हैं, जहाँ पे मेन नहीं जा सकते, तो वो डिस्क्रिमिनेशन फिर नहीं हुई ना, क्योंकि आप कई जगह मेन को अलाउ नहीं कर रहे, कई जगह विमेन को अलाउ नहीं कर रहे। सो अब ये तो कोई भी एनालॉजी ले लीजिए, कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे मेन नहीं जाते, कई ऐसी जगह हैं जहाँ विमेन नहीं जाती, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। लेकिन डिस्क्रिमिनेशन कहाँ है? जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का वही, अब मैं सुप्रीम कोर्ट के लिए 4 नींबू वाली बात कहूंगा तो मैं सीधे जेल में जाऊंगा और आप भी साथ जाओगे तिहाड़, तो काट देना भाई। भाई ये जरा प्लीज ये काट देना, ठीक वो है? ध्यान रख लेंगे हम। हाँ, जब कैथोलिक विमेन कैनॉट बी ऑर्डेन्ड एज प्रीस्ट, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। विमेन कैनॉट बी आर नॉट अलाउड टू गो इनटू द सैंक्टम सैंक्टोरम ऑफ द मॉस्क, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो साला जब ये होता है तब वही नींबू और वो वाला, तब क्या हो जाता है? सांप सूंघ जाता है सुप्रीम कोर्ट को, हिंदूज का ही याद आता है। दिस इज द प्रॉब्लम। सी, कहने को तो बाय दैट सेम लॉजिक, इफ मुस्लिम मेन हैव टू वेयर अ स्कल कैप एंड हैव अ बियर्ड, इज दैट नॉट एन इक्विवेलेंस टू बुर्का? तो हम ये भी कह सकते हैं कि देखो, कुछ में अगर मैंडेट दोनों तरफ जा रहा है तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ जा रहा है। तो फिर वो सेम लॉजिक हम यहाँ टेम्पल्स पे भी लगा सकते हैं। मेरा पॉइंट है, डज इट नॉट गेट वेरी मडी इन ट्राइंग टू से दिस इज, जैसे आप जो कह रहे हो सांप सूंघ जाता है एटसेट्रा, इट्स सो हार्ड, क्योंकि ये इतना टेक्निकल, हाइपर टेक्निकल होता चला जाता है। इसीलिए तो भाई मैं फर्स्ट प्रिंसिपल्स पे जाता हूँ और कहता हूँ आई एम अ फ्री स्पीच एब्सोल्यूटिस्ट, क्योंकि आई हेट सब्जेक्ट, आई एम नॉट अ ग्रे गाय, आई एम अ ब्लैक एंड वाइट गाय। मुझे ये बहुत पर्टर्ब करती हैं चीज़ें कि कौन डिसाइड कर रहा है हेट स्पीच क्या है, हेट स्पीच नहीं है, और यहाँ जाओ वहाँ ना जाओ। मैं कहता हूँ यार, इफ़ यू आर अ फ्री स्पीच एब्सोल्यूटिस्ट विद इन 4 कैवियट्स दैट आई हैव, विच एवरी सेंसिबल पर्सन वुड हैव, कि स्टेट सीक्रेट्स डाइवर्ज नहीं कर सकते, थिएटर में आग नहीं बोल सकते, सो इट डजंट हार्म एनीबडी एल्स। So those are 4 caveats, ठीक है? But other than that, why be subjective यार? Why should anybody have the power to decide Right. this is right or this is wrong? Right. I'll give you an example. सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट अप्रैल 23 में कहा था कि हर एक हेट स्पीच के केस में स्टेट गवर्नमेंट सुओ मोटो केस बनाए उस पर, सुओ मोटो। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। अक्टूबर में उदयनिधि स्टालिन ने क्या कहा? हम इरेडिकेट करें सर, ये हेट स्पीच है कि नहीं, आप मानते हैं? बाय द डेफिनेशन दैट द सुप्रीम कोर्ट फॉलोज है। इससे बड़ी हेट स्पीच डेफिनेशन अगर हम लेके चलें सुप्रीम कोर्ट की, हो ही नहीं सकती। स्पेशली नुपुर को जो उन्होंने क्या कहा, व्हेन शी कोटेड ओनली द स्क्रिप्चर्स, उसको हेट स्पीच मान लिया, कह दिया दुनिया जला दी, इंडिया जला दिया। इसको 6 महीने हो गए, तमिलनाडु गवर्नमेंट हैज नॉट फाइल्ड। इज दैट नॉट अ कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट? टेल मी। वेल या, so either Tamil Nadu government says that yeah, this is not hate speech, then it is contradicting Supreme Court and High Court of yesterday that has called it hate speech, or they don't have the guts to go after their own. Of course they don't. वो चीफ मिनिस्टर के बेटे को, मिनिस्टर है डीएमके का, राजा मिनिस्टर है डीएमके का, वो क्यों अरेस्ट केस करेंगे उस पर? तो अब ये डाइकोटमी है कि नहीं है? कौन डिसाइड करेगा हेट स्पीच क्या है, हेट स्पीच नहीं है? ठीक है, दिस इज द प्रॉब्लम। फेयर। So I am for hate speech. I'm actually for hate speech. I have stood with Akbaruddin Owaisi. And I have stood with his cohorts like Zubair and all these people, जो frauds हैं. I have stood with their whatever they have said as well. So all in all, from बहुत मार पड़ती है मुझे बीच में. I can imagine. Right wing मेरे अपने दोस्तों से मार पड़ती है. पता है सर, मेरा यही क्वेश्चन है। तो आपने एक बहुत अच्छा आर्गुमेंट खड़ा कर दिया है कि देयर इज अ स्टेट स्पॉन्सर्ड, मैं अपार्थाइड वर्ड को नहीं यूज करता, बट लेट्स से अ स्टेट स्पॉन्सर्ड नेक्सस, चाहे वो लॉ में हो, चाहे वो जुडिशरी में हो, चाहे वो कोई हिस्टोरिकल जूरिस्प्रूडेंस में हो, जहां से एक सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन बिल्ट इनटू पॉलिसी, बिल्ट इनटू लॉ हिंदूज के अगेंस्ट होता है। एंड ये एक चीज आपने करी, पैरेलली मैं समझता हूं ये सेंटिमेंट लोगों में भी आने लगा फॉर व्हाटएवर रीजन, एक्सवाइजी। बिल्कुल आया। एक पॉइंट पे आप पब्लिकली एक्टिव नहीं होगे, और जो चीज आप फेस कर रहे हो, विच इज दैट सम पीपल ऑफ योर ओन कैंप शिट ऑन यू फॉर स्टैंडिंग बाय योर प्रिंसिपल्स,
वहां पे रेजिस्टिव फोर्स जो आपकी है, जहां आप कहते हो नहीं तुम कुछ भी बोलते रहो, मैं तुमसे एग्री नहीं करता, तुम इसको एक्सट्रीम में ले जा रहे हो, वो खत्म हो जाएगी. डू यू नॉट वरी, एंड दिस इज माई कॉन्स्टेंट वरी विद दिस, or not my worry, but let's say this is a fairish criticism I can come up with this Hindu renaissance that is happening of sorts. ये जो हिंदू जाग रहा है वाली बात है, आज तो ये मॉडरेट है, कल को ये एक्चुअली एक्सट्रीम हो गई तो, क्योंकि पॉलिटिकल स्पेस में तो फैनेटिक्स विन ना. आप जितनी एक्सट्रीम बात करोगे उतने वोट पकड़ोगे, उतनी अपनी इन ग्रुप कम्युनिटी बनाओगे. जितने डिसइनफ्रेंचाइज लोग होंगे, जितनों के पास नौकरी नहीं होगी, अनएम्प्लॉयड होंगे, उनको कन्वर्ट करना और आसान होते जाएगा, ये बोल बोल के कि हिंदू खतरे में है. एक दिन जो ये मॉडरेट अवेकनिंग है, जो ये रियल अवेकनिंग है, जो ये इकोनॉमिक अवेकनिंग है, जो ये एक इंडिया को आगे ले जाने लायक अवेकनिंग है, एक सोशल अवेकनिंग है, वो फैनेटिकल अवेकनिंग बन जाएगी. फिर ये एक रियल डेंजर नहीं है? नहीं, ये डेंजर तो जब से ह्यूमैनिटी बनी ये तब से चला आ रहा है. ये डेंजर तो रिलीजन का भी कह सकते हैं. आपने एक बुक लिख दी और वो बुक अगर कोई उस पर एम्बाइब करना शुरू कर दे, ये डेंजर नहीं है? ऑफ कोर्स डेंजर है. हम तो रियल लाइफ देख रहे हैं, इसका इंस्टेंस देख रहे हैं. हाँ. बट उसमें हाउ कैन यू से कि डू नॉट गो बाय फर्स्ट प्रिंसिपल्स, बिकॉज व्हाट इज देन द जॉब ऑफ द स्टेट? द जॉब ऑफ द स्टेट is to prevent violence, is to resist that tendency, is not to worry about whether what you've said is morally right and wrong, and that don't say it because that can have repercussions. That is disastrous for a state, for the psyche of a country, because by that means you can be scared by anything. To give you an example, शाह बानो का जो जजमेंट आया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 200 रुपए इस बेचारी विडो को देने चाहिए, उसके अगेंस्ट पार्लियामेंट ने ओवरटर्न किया था ना जजमेंट. क्यों किया था? बिकॉज दे वांटेड टू प्लेकेट मुस्लिम्स, बिकॉज मिलियंस ऑफ मुस्लिम्स प्रोटेस्टेड कि ये नहीं होगा. तो अब आप कहना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट शुड नॉट हैव गिवन अ मॉरली एंड एथिकली जस्ट जजमेंट बिकॉज पीपल केम ऑन टू द स्ट्रीट एंड दे प्रोटेस्टेड. ये तो स्ट्रीट वीटो हो गया ना. बिल्कुल. अब कल को आप कहेंगे कि सलमान रश्दी शुड नॉट हैव रिटन दैट बुक बिकॉज people came onto the streets and committed violence. Nupur should not have quoted hadiths because people resorted to stone pelting and they started beheading. Right. That is a cowardly state. Agreed. That's a soft state. But my argument is something to the effect of जो हमने पाकिस्तान में देखा. Pakistan started off as saying, listen, हम एक पाक देश बना रहे हैं मुस्लिम्स के लिए. फिर जियाउल हक आया, सब ले गया. अब उसको इतना एक्सट्रीम ले जा चुका है कि आप पाकिस्तान में क्या तो फ्रीडम की बात करो. Similarly we see what एक्सट्रीम नहीं ले जा चुका. फिर ये मैं कहता हूँ, देयर इज नथिंग लाइक रेडिकल इस्लाम. इट इज इस्लाम फंडामेंटली. अब आप मुझे बताओ, अब मैं एक साइंटिस्ट हूँ, मैंने लेंजर किताब आती है स्ट्रायर बायोकेमिस्ट्री, वो पूरी पढ़ ली, तो मैं रेडिकल साइंटिस्ट हूँ? विल यू कॉल मी रेडिकल साइंटिस्ट? नो. योर आर्गुमेंट इज कि ऐसा नहीं है, वो स्पेक्ट्रम है कि अगर आप इस्लाम फॉलो कर रहे हो इन इट्स एसेंस तो रेडिकल है. ये तो अल्लाह ने कहा है. ये आप ईच एंड एवरी वर्स हैज टू बी फॉलोड. देयर इज नो, अल्लाह हैज सेड दिस, देयर इज नो कॉन्ट्रडिक्शन. And he has defined who is a good Muslim, who is a bad Muslim. जब ये सब चीज़ें हो चुकी हैं, तो जो आदमी कुरान को फॉलो कर रहा है वो रेडिकल कैसे हो गया भाई? So there is nothing called extremism in what Zia did. Okay, was according to the Islamic principles. Right. What Mehbooba Mufti wanted, death by stoning, is according to Islamic principles. तभी तो मैं कहता हूँ, you go after the fundamentalists. Right. But you spare the fundamentals. मेरा पॉइंट यही है, पॉलिटिकल स्पेस में there is no regression to the mean, it is always regression to the extreme, right? And so I understand, I can play with your argument. My worry is कि कल को we don't have stalwarts like Modi who are making sure that this Hindu awakening is happening with enough friction कि ये कहीं extreme में नहीं. कैसी बात कर रहे हो यार? अब मैं इस पे कॉन्ट्रडिक्ट करूंगा. हाँ प्लीज. आप किसी इम्पोर्टेंट आदमी को वायग्रा दो, does it make any sense? मतलब I think it will still get him hard, but he won't copy it ना. No, आप जेनेटिकली मतलब वो कर हाँ वाला, ये नहीं कि वो इस वाला. Right. Sorry, this might be egregious misplaced analogy. Right. और माफ करें, ये मेरे मुंह से निकल गया. नहीं ठीक है सर. हाँ, for the sake of the argument. For the sake of the argument ये है. अब इसको ये ना कहे हाय हाय. प्रॉब्लम इज, मुझे तो अब ये लगता है मोदी राज में कि ऐसे अच्छा होता कि हिंदू जागा ही नहीं होता. क्योंकि एक आदमी सोया पड़ा है, हाँ, हिंदूज के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उसको कोई नॉलेज नहीं है, वो सोता रहेगा ना. हाँ. उसको आपने ऐसे अरे उठ 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 उठ, ये देख अत्याचार हो रहा है, ये देख ये 8 चीजें अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन तू कुछ नहीं कर सकता. हाँ. विच इज वर्स, कि वो सो रहा था, so ignorance is better than जागने का क्या फायदा अगर आप कुछ कर ना पाओ. 10 साल से सरकार है, हाँ. आपकी सरकार है ना. हाँ. ठीक है, और
आप अभी भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, अभी भी वक्फ एक्ट है, अभी भी हिंदूज जो है राइट टू एजुकेशन में है, राइट टू आरटी में है। हाँ हाँ हाँ। तो अब ये जाग गया, तो तभी तो मैं कह रहा हूँ इस किताब का मुझे अभी तक पर्पस समझ में नहीं आया। मैं जो आपने लिखी है। हाँ हाँ, कि भाई मैं अगर ये आप कह रहे हैं, मैं खुद नहीं कह रहा, हिंदू जाग रहे हैं किताब पढ़ के, जाग के क्या कहेगा भाई, क्या चल रहा है ये। अभी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने कहा ना मोदी स्टालवॉर्ट लाइक मोदी राज में ही तो ये अत्याचार हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, है ना। हाउ वुड आई इफ आई वर टू एज अ रिटोरिकल क्वेश्चन, डोंट यू थिंक what I've said just now makes some sense? Right, sure. I as a rhetorical... if at all it is a government working for Hindu interests, then these are the 8 Hindu interests, यार. Then you are saying if this is the awakening, I was better asleep, क्योंकि awaken होने के बाद सिर्फ frustration ही मिल रही है, right? So आपको you have no... I can understand आप कह रहे हो कि अभी चलो suppose this is the awakening, maybe the changes मुझे पिटवाओगे। अच्छा, जितने भी लोग ये पूरे पॉडकास्ट का 2-2 मिनट के फ्रैगमेंट निकाल के ट्रोलिंग करते हैं ना, इसकी करना मेरी मत। मैं पिटूंगा यार, मैं तो डेविल्स एडवोकेट प्ले करने आया था। सर अब पता है उसका कुछ नहीं कर सकते, पिटवाएगा मुझे, क्योंकि मेरे ख्याल से इससे ऑनेस्ट और इससे रियल मैं क्वेश्चनिंग कर नहीं सकता। तो अब वो करते रहे ट्विटर पे बैठे खाली लोग हैं। हाँ, बट तो आप ये कह रहे हो कि ठीक है अभी अवेकनिंग हुई है, फ्रस्ट्रेशन है, हो सकता है इसके बाद एक्चुअल चेंज आए, होपफुली आना चाहिए। मुझे लग रहा है आ रहा है, हाँ आएगा। मोदी का भी एक विजन होता है। देखो यार, हर एक आदमी, अब आई वॉन्ट अ पेस, राइट, ठीक है, ऑन विच मोदी इज नॉट वर्किंग। गवर्नेंस तो मोदी कह रहा है भाई तू बन जा प्राइम मिनिस्टर ना। हाँ 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 हाँ। मेरी एक पेस है, मुझे कर लेने दे, राइट। और उसमें मैं क्या कहूंगा, नहीं मुझे बनाओ प्राइम मिनिस्टर, नहीं, राइट। तो वो कर रहा है अपनी पेस से। मेरी अपनी राइट है, मैं वो एग्जिबिट कर रहा हूँ अपनी राइट, फ्रस्ट्रेशन या आउटरेज या कुछ भी कह लो, ठीक है। बट आई एम अवेयर दैट मोदी इज अवेयर ऑफ दीज इश्यूज। आई एम 100% अवेयर। हाँ, पहले उसने देखो 2008-9 में उसने उन्होंने एक टॉक दी थी जो बहुत लोग जानते नहीं हैं, बहुत ही मतलब आई वुड से दैट इज द इन्फ्लेक्शन पॉइंट ऑफ इंडिया। ही सेड आई एम गोइंग टू क्रिएट अ नैनो क्लास। लोगों ने कहा ये क्या नैनो क्लास क्या होती है, जिनके पास नैनो गाड़ी होगी वो नैनो, नहीं। व्हाट ही सेड वाज द लोएस्ट सोशियो इकोनॉमिक स्ट्राटा से थोड़ा सा ऊपर, लेकिन लोअर मिडिल क्लास से नीचे, ये मैं बनाऊंगा। और आप 15 साल देख लीजिए, उसने यही किया है। 120 मिलियन टॉयलेट्स बनाए हैं। ये अदानी अंबानी के लिए थोड़ा ना बनाए उसने, हमारे लिए नहीं। व्हेन वाज द लास्ट टाइम वी नीडेड अ टॉयलेट यार? डोंट वी हैव अ टॉयलेट? 110 मिलियन वाटर कनेक्शंस किए हैं, ठीक है, जहां 4 लाख लोग डायरिया से मरते थे 10 साल पहले, ड्रास्टिकल रिडक्शन। 100 मिलियन गैस सिलेंडर दिए। डिड यू एवर नीड अ गैस सिलेंडर फ्रॉम द गवर्नमेंट? वी मस्ट रियलाइज व्हेन वी आर raking up these issues, outraging on them, these are not the bloody issues of the majority of this country. Modi realized this. He's worked towards it, yeah. So I'm appreciative of that. I agree. So please make this distinction. You are saying intentionally he's moving in that direction, और उसकी पेस उनके हिसाब से, गवर्नेंस की रियलिटी के हिसाब से। हर एक इंडियन के पास एक घर होगा, जॉब होगा, टॉयलेट होगा, आयुष्मान हेल्थ कार्ड होगा, गैस कनेक्शन होंगे, मुद्रा लोन 430 मिलियन जो दे वो होगा, तब वो ये किताब पढ़ के कहेगा हाँ यार अब ये सब आ गया, अब टाइम आ गया। क्योंकि हम इंडिविजुअली उस जगह पे है जहां हमारे पास ये सब है, हम सोच सकते हैं। करेक्ट। एंड आई एग्री। मेरा पॉइंट, द लास्ट सॉर्ट ऑफ पॉइंट ऑन दिस वन इज, आफ्टर दिस इज रियलाइज्ड, say this takes 50 years, right? Say 10 years. Hopefully, I think 15 years. Whatever, right? You take a timeline. उसके बाद once we are at stasis, once we have arrived at that place जहां पे हिंदू इंजरी रिड्रेस हो गई है, Yes. उसके बाद do you not foresee a risk of Hindu extremism as a means of garnering votes? By what logic? By the sheer logic of what Hinduism is. भाई हिंदुइज्म एक ऐसा रिलीजन है जहां पे लोग एथिज्म को प्रमोट करते हैं यार। अब आपने कहा, इज दैट नॉट, आई मीन दैट इज द मदर ऑफ ऑल कॉन्ट्रडिक्शन। Right. चारवाक फिलोसफी इज सेलिब्रेटेड इन हिंदुइज्म। यू शो मी वन अदर रिलीजन जहां पे वो कहें कि नहीं एथीस्ट बनना अच्छी बात है। यू शो मी वन अदर रिलीजन जहां पे लिंगायत हैं जो कि बीजेपी के मिलियंस ऑफ वोटर्स हैं, दे रिजेक्ट द वेदास। यू लुक एट दयानंद सरस्वती, ही इज रेवर्ड। यू लुक एट हिज सत्यार्थ प्रकाश, यू लुक एट द रिफॉर्मिस्ट। बाय वेरी नेचर Hinduism is liberal, it is all accepting. Why? Because I believe that the religious aspects of Hinduism are an offshoot of the way of life. Right. Whereas in Islam, you know, the way of life is the offshoot of religion. So ये dogma जो है ना, ये Hinduism में है ही नहीं dogma ये कि ये करो, ये करो, ये करो, ये करो. And is that not treating human, let's say,
the human ability to be malicious very like as a like are we trivializing the human ability to be malicious? Because going back to the whole beef wala thing na, और beef wala thing भी नहीं, आप discourse में भी देखो, there is a very obvious, the word is Abrahamization of Hinduism that is happening. मेरा पॉइंट ये, पॉलिटिकल स्पेस में मैं नहीं ट्रस्ट करता एक पॉलिटिकल सॉर्ट ऑफ सिचुएशन में कोई आदमी जो पावर अक्वायर कर सकता है एक लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट लेके कितनी भी एक्सट्रीम, वो नहीं करेगा. बिकॉज लाइक यू सेड राइट, पीपल कैन स्मेल दैट काइंड ऑफ थिंग. पॉलिटिशियंस आर वेरी क्लेवर एंड दे आर वेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी माइंडेड. At some point, is that not also an existential risk to your version of Hinduism? Not just Hinduism itself in the sense कि Hindus extreme हो जाएंगे, but जो Hinduism की plurality है, जो उसकी openness है, जो उसकी liberality है, क्या उस पे भी I get it, because as the phrase goes that too much of tolerance is intolerance. Ultimately leads to intolerance. Right. Which is true. Right. And Hindus have suffered this. And it's not just me saying it. वही कहता हूँ ना कि मैं बचता क्यों हूँ सर तन से, क्योंकि मैं अपना ओपिनियन नहीं देता इन चीज़ों. मुझे पता है कि ओपिनियन आपने दिया और आपका सर तन से अलग हो गया. मैं कोट करता हूँ. मैं कहता हूँ लोगों से, भाई आपको मुझसे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, जिसने कोट किया है उससे आके लड़ो ना. वो तो ये मैं आज नहीं, हम नहीं कह रहे प्रखर, 150 साल पहले किसी ने कहा था कि इफ देयर आर 2 रिलीजन्स ऑन अर्थ दैट आर आउट टू डिस्ट्रॉय एवरी अदर रिलीजन on earth, that is Christianity and Islam. ये किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने. अब वो संघी थे क्या? अम्बेडकर का आप देखिए व्यूज इस्लाम पे, वो संघी हैं क्या? The point is, people have realized this hundreds of years ago. We are just saying, we are discussing this now, but this is old hat, because people know what else is predatory, what else is proselytization for, what else is the fact कि आप जन्नत जाओगे अगर आप किसी को कन्वर्ट करते हो. ये आप रोक नहीं सकते, ऑनेस्टली रोक नहीं सकते. दिस इज माई बिलीफ. राइट. एंड दिस ऑल्सो रविंद्रनाथ टैगोर सेड, द ओनली वे टू मेक पीस विद देम इज टू एम्ब्रेस देम. तो हम सब एक ना एक दिन इस व्हील के नीचे आने वाले हैं, पता है मुझे. अब कोई पागल ही होगा जो सोचेगा कि नहीं ऐसा नहीं होगा. बिकॉज आप क्या करोगे? आप आर यू गोइंग टू बैन दीज रिलीजन्स? टेल मी, आर यू गोइंग टू बैन प्रोसेलेटाइजेशन? वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं होगा. इट्स नॉट कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड. सो एंड यू कांट इवन बैन दी कोवर्जन, कन्वर्जन. आपने पंजाब के एग्जाम्पल लिया, आंध्र प्रदेश. सो सूनर और लेटर ऑल ऑफ अस, वेदर वी लाइक इट और नॉट, आर गोइंग टू बी कन्वर्टेड. It's just a matter of time. I'm sorry to being so despondent about it. No, you are so poetically pessimistic about it. I see where you're coming from. There is another gentleman, by the way. I'm pretty sure you've heard of his name. His name is Dhruv Rathi. Yes. You've probably come across. He has a very similar pessimism, but on the other side of the spectrum. आपने उसका भी recently, you saw that dictatorship वाला video he did. I saw I skimmed through it. Right. But I saw the rebuttal of that by Ajit Bharti. Ajit Bharti is really gaining popularity. I have no idea who the gentleman is. He's brilliant. He's brilliant. और वो पहले मुझे लगता था यार ये क्यों इतना प्रोवोक कर रहा है, क्यों तिहाड़ जाने का इसका वो है. पर कई लोगों का ना नेचर ही ऐसा होता है. Especially people who are married would know this, understand this. Deep life truth. देखो हम एक चीज से डर सकते हैं, हम बीवी से नहीं डर सकते सर. हम बीवी से नहीं डर सकते यहाँ पे, बाकी सब चीजें ठीक है. But I mean, I have nothing against the guy. I'm a free, as I said, जिसको बोलना है, जिसको कुछ बोलना है बोलो यार. वो इन्फॉर्म करता है, उसकी अपनी सेट ऑडियंस है. लेकिन वही ये जो मैंने कहा ना, 4 नींबू निचोड़ने से दूध नहीं इतना नहीं फटता जितनी उसकी भी वही हालत है. He said a few things against Islam that he then quietly deleted. He has a constituency. He is feeding that constituency. He can't go against it. Now, he is not being honest. But ठीक है यार, you get all sorts. His argument was, I wrote it down, he said there is 7-8 steps. एक तो कह रहा है media is not allowed to oppose. There is MLA horse trading. यार मजाक चल रहा है क्या यहाँ पे? मतलब you see, this is the problem. और कल ही मैंने ये कहा है, जो ये लोग कहते हैं ना, we speak truth to power. क्या इन सालों को लगता है कि सिर्फ मोदी पावर में है, दीदी पावर में नहीं है, पिनराई विजयन पावर में नहीं है, केजरीवाल पंजाब में कैसे कैसे लोगों को पकड़ रहा है. अभी 2 दिन पहले किसी को पकड़ा है जिसने LPU यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ वीडियो आता है. दैट गाय इज अंडर दिस थिंग. उससे पहले तेजेंद्र बग्गा को कैसे पकड़ रहे थे, वो हरियाणा पुलिस ने पकड़ा, उनको बचा लिया. उनको कहाँ और इतने अभी वो शीश महल पे जो कवरेज करी थी टाइम्स नाउ जर्नलिस्ट की, दे अरेस्टेड हर.
Mamata, what is going on in Bengal? I mean, Modi is like cotton candy compared to what she's doing. Give me a brief on that, Sandesh Khali. So Sandesh Khali, matlab the whole. Yeah. What is happening? Because I'm not caught up. So Sandesh Khali, dozen or so brave women, they came out and they alleged huge atrocities were committed by TMC leaders. One of them was this guy called Sheikh Shah Jahan, and they alleged gang rapes and torture and all sorts of things going on for years, where Hindu women specifically were selected on. It's just so horrible, it's cringeworthy for me to even repeat it. Bottom line is the government was protecting them. Mamata went on the floor of the assembly to kind of cushion the crimes of the Sheikh Shah Jahan and almost gave him a clean chit. The High Court stepped in. For 50 days, this guy was roaming free. High Court said, arrest this guy. And then this guy was arrested. He walks into the police station like a, Bahubali kind of a thing. Obviously, the police is scared, is in cahoots with this guy. The High Court said this guy must be handed over to the CBI because the High Court said we have no faith in the Bengal police. Does Dhruv Rathi, has he mentioned any atrocities committed in Bengal? Forget about this. Forget about all these things, what has been happening since 5 years. When as many as 20,000 seats went uncontested in the Bengal Panchayat election. तो जब आप इतने सिलेक्टिव हो जाते हो कि आपको सिर्फ मोदी जो कर रहा है, सरकार कर रही है, वो दिख रहा है, बाकी सारी जो स्टेट गवर्नमेंट्स कर रही हैं वो नहीं दिख रहा. So then I don't care about your views. You're free to express them. Right. The problem is selectivity. और ये 15 साल से चली आ रही है. मतलब when Congress was in charge of Chhattisgarh, one man complained of power cuts. He was charged under sedition. ये ध्रुव राठी ने एक्सपोज किया, नहीं किया. तो राजस्थान में क्या हो रहा था when Congress was in charge? So many things, So when they say press is being muzzled, this and that, according to me, and I have exposed this Modi government more than anybody else by bringing out instances. In fact, I have a running thread of freedom of expression under the Congress and freedom of expression under BJP. the BJP. लोग वो मेरे जो प्यारे मित्र हैं आरबी राइट विंग वाले और ये लेफ्टिस्ट वाले, उनको ये वाला थ्रेड अच्छा नहीं लगता. बट ये थ्रेड ज़रूरी है बिकॉज अल्टीमेटली जो देश से प्यार करता है उसको किसी पार्टी या किसी आदमी से प्यार नहीं होना चाहिए यार. आई से मॉक एवरी अदर इज्म एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म. तो उसमें एक एडिटर थे मिस्टर पटेल. ही क्रिटिसाइज द कोविड पॉलिसी ऑफ द गुजरात चीफ मिनिस्टर. ही वॉज अरेस्टेड फॉर 15 days यार. आई प्रोटेस्टेड अगेंस्ट इट. ध्रुव राठी को शायद सिर्फ वो दिखा, ये नहीं दिखा कि जो बंगाल में डॉक्टर्स जिन्होंने प्रोटेस्ट किया था उनको भी अरेस्ट कर दिया गया था. So when you are so selective to the point of being extreme, you make an ass of yourself. But I mean, it's a free country. You're free to make an ass of yourself. Right. So he says there is MLA horse trading. He said undermining authorities of state governments. जैसे दिल्ली में, he says LGs और governors use होते हैं to overstep into state affairs. There is something he brings up which I might have some sentiment I think toward. वो चंडीगढ़ के इलेक्शन का उसने पूरा चंडीगढ़ वाली बात करी. किया यार. But he says weaponization of investigative agencies, CBI, ED. Yes. Do you agree with that? 100%. कि there is a weaponization. नहीं, weaponization का क्या मतलब है? It's not independent यार. And I've said this. So during the UPA, CBI was famously called or infamously called the caged parrot. Absolutely true, right? And I have said all that has happened is you domesticate a parrot and it finds its own shoulder. You can check. I mean, this view is there hundreds of times repeated on YouTube. And right now the favorite shoulder is of Modi. So obviously they are not independent. And I have this data that 95% of the politicians being chased by ED are belonging to the opposition. Yep. ये fact है. But ध्रुव राठी ने ये बताया कि ये स्टेट गवर्नमेंट्स भी कर रही हैं अपनी CID से. ये बताया कि जब UPA के कंट्रोल में ये सब इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी तब भी वो यही कर रही थी. वो बताया इसने. अगर वो बताया, then what he says holds credence. But then again, all this is constitutionally mandated. अब अगर CBI का कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में है तो सुप्रीम कोर्ट ये कह सकता है कि इलीगल है. सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स एनोनिमिटी इलीगल है. बाय द वे, आई वाज अगेंस्ट द एनोनिमिटी. ओके, ये कहा क्यों? क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट सोचता है इलीगल है. अगर सुप्रीम कोर्ट कल को ये कह दे कि गवर्नमेंट कंट्रोलिंग CBI एंड ED इज इलीगल, इट वुड बी रिमूव्ड. व्हाई हैजंट सुप्रीम कोर्ट सेड इट? सो प्रॉब्लम ये है, एज आई से दिस,
कि वी आर अ बनाना रिपब्लिक फ्रॉम द मोमेंट वी बिकेम अ रिपब्लिक. हमें इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये सारी चीज़ें जो मोदी सरकार कर रही है, बाकी स्टेट गवर्नमेंट्स कर रही हैं, ये इनको लीगल प्रोटेक्शन है ये करने के लिए भाई. राइट. कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट कर रहा है ये. So your claim is कि I agree with Dhruv to the extent of what he's pointing out, but it's not the complete picture. But why should I agree with Dhruv? Should agree with what I'm saying ना. वो कौन है भाई? उससे 10 साल पहले तो मैं बोलता आ रहा हूँ ये. हम सब बोलते आ रहे हैं, not just me. Right. उसने एक चीज उठा के बोल रहा है, मोदी ये कर रहा है, भाई हम 10 साल से बोल रहे हैं ये. Right. So, पर वो ये नहीं बता रहा कि बाकी सारी सरकारें क्या कर रही हैं. तो द लार्जर पॉइंट इज कि स्टेट इंडिविजुअल को ऑप्रेस करता है, कि सिस्टम इज डिजाइन टू सॉर्ट ऑफ, सिस्टम इज डिजाइन, और उसके बाद जो भी पावर में है वो सिस्टम को मिसयूज करता ही करता है. एब्सोल्युटली. हाँ. तो हम ये नहीं कह रहे कि मतलब ये गवर्नमेंट या फलानी गवर्नमेंट दूध से धुली है, सब यही करते हैं. बिल्कुल नहीं. दूध मैं तो ये भाई ये वॉशिंग मशीन वाला पूरा, मैंने तो 2 दिन पहले मोदी सरकार को धोबी घाट कह दिया. हाँ. काफी मेरे मित्र काफी बुरा नाराज माने थे. होंगे. हाँ. पर मैंने कहा आप मुझे ये बताओ कि जिसको नरेंद्र मोदी जी एक शाम को कह रहे थे कि इसने 70,000 करोड़ का स्कैम किया है, अगले दिन वो बीजेपी में इंडक्ट हो गया. हाँ. अजीत पवार. हाँ. जिसको मोदी जी कह रहे थे कि मिस्टर क्या चौहान या उनका नाम भूल गया मैं, जो आदर्श स्कैम में थे वो, ही शुड बी अरेस्टेड. ही इज नाउ जॉइंड द बीजेपी. 2 दिन पहले शिवेंदु अधिकारी एक किसी तपन जो भी है उसको कह रहे थे इसको अरेस्ट करो, ये थीफ है. कल वो टीएमसी से बीजेपी में आ गया. तो ये वॉशिंग मशीन है. अब ये आप कल को आप कहो कि ओ सर यू आर सेइंग दिस बिकॉज यू एग्री विद ध्रुव राठी. अरे नहीं भाई, राठी कौन? मैं ये 10 साल से बोल रहा हूँ. And plus you're making a broader point. Yes. You're making a broader point about the system, not so much about one person or one party. So people like Dhruv Rathi, I don't know. That is why I'm saying I have nothing against the guy. Right. It's a free country. Right. But does he think people are fools that they will be, blown away or be carried away by this selective quoting of him? No, people aren't. Well, sir, 20 million people have watched that video. यार तो अब ये रैली में जो लोग आते हैं, हाँ. अब ये अखिलेश यादव की रैली में 15 लोग आए थे. कितने जरा बताना लोकसभा 80 में से कितने मिले हैं? लोग आके देखेंगे. अधिकतर लोगों को जो महान बनाया है, ये ऐसे लोग महान बने, ये राइट विंगर्स नहीं बनाया है. यही साले आके वीडियो देखते हैं और बाद में गाली देते हैं. To be very honest, मेरे को पता भी नहीं होता. अब ये exactly. अब ये वो कौन है, वो जो बॉक्सर था, जर्नलिस्ट भी है. बॉक्सर जर्नलिस्ट? हाँ, नाम याद नहीं आ रहा यार. जिसकी अंश गूगल करेगा. हाँ, उसका काम है. हाँ, एक बार जब बॉक्सर जर्नलिस्ट जरा गूगल करना. शेखर गुप्ता. हाँ, इंडियन बॉक्सर जर्नलिस्ट. राजदीप करके कोई नाम आता है क्या? ठीक है. अब इसके ही इज सो पॉपुलर. व्हाई? राइट विंगर्स have made him popular. He has 8-9 million followers. ब्लडी उसमें से 99% फॉलोअर्स उसको ट्रोल करने के लिए बने हुए हैं. लेकिन अब वो कहेगा यार मेरे तो 9 मिलियन फॉलोअर्स. तो ये लोग खड़े राइट विंगर्स ने किया है. ये अरफा खानुम और ये रेडियो जॉकी वो कौन है, अनपढ़ आ भी जाते हैं, आधे नाम भी नहीं पता मुझे. ठीक. सायमा या जो भी हैं. Right. They have all been propped up by quote unquote our side. Right. But okay, I understand. And this is no shade on Dhruv, right? Yeah. Dhruv has just become a very popular face against what sort of say men like you represent, right? You have to describe what I represent. Well, you are a complicated person in that way. Okay. But what the perceptually you are right wing, na? You are right wing with very liberal values, and that is very वो समझ नहीं आता mass perception पे लोगों को इतनी आसानी से, तभी शायद आपको भी ट्रोल करते हो. मेरा पॉइंट ये है कि is it fair to say that Dhruv probably has good intentions but has very limited knowledge? No. You think he has improper intentions? Yes. Okay. He has an agenda. There is nothing wrong in having an agenda. No. Every politician has an agenda. Right. अब आप ध्रुव को हम इतना कह रहे हैं, कल को बीजेपी ध्रुव को इंडक्ट कर लेगी, तो फिर ध्रुव बदल जाएगा. और जो ही लोग नहीं बदलेगा नहीं, जो मतलब इन द सेंस अपनी सोच बदलेगा, लेकिन सिलेक्टिविटी अब वो दूसरी साइड पे सिलेक्टिव होगा. हाँ. Right. I'll give you an example. My namesake आनंद सिंह, बीजेपी ने धरना किया कर्नाटका में कि इसको अरेस्ट करो, रोको, ये रोका, वो रोका, इसको अरेस्ट करो. Why? Because he was implicated. There were 15 cases of forest crime charges going on. बहुत सीरियस होते हैं फॉरेस्ट क्राइम चार्जेस वगैरह, ये स्मगलिंग और सैंडलवुड वगैरह बहुत सारे थे उस पर. What did he do? He joined the BJP. कांग्रेस का था आनंद सिंह. What did BJP do next? They made him the forest minister. For real? ये ध्रुव राठी ने कहा है.
नहीं कहा ना? नहीं, I don't think so, ये no. मैंने कहा है। ये क्या ये living 5 साल irony है? से, अब आप देख रहे हो ये। Oh my God! हाँ। क्या लिविंग आयरनी है ये बात, क्या क्रेज। तो मतलब आपका आर्गुमेंट ये है कि इफेक्टिवली हम लोग अगर ध्रुव की What is definition Dhruv trying to say here? कि ये नया फिनोमेना है, Yes. बट ये नया फिनोमेना नहीं है। Yeah, so he is making an ass of himself यार। राइट, ये हिस्टोरिकली हम डिक्टेटरशिप टेंडेंसीज हैं हमारे सिस्टम में, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे जुडिशियल उसमें। डिक्टेटरशिप टेंडेंसीज पॉलिटिशियंस में भले ही ना हो, हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन हैज एंडाउड देम विद दिस। यस, नेहरू, मैं क्यों कहता हूं, मैं पिछले 70 साल में इस वर्ल्ड ने बहुत डिक्टेटर्स देखे हैं। हाँ। माओ, स्टालिन, कास्ट्रो, नेहरू। तो ये 2 सेकंड बाद अरे नेहरू भी ऐड कर दिया। पढ़ लो थोड़ा सा भाई। नेहरू जितना बड़ा डिक्टेटर था, हमारे देश में ऐसा डिक्टेटर हुआ नहीं। फर्स्ट अमेंडमेंट कौन लाया? फ्रीडम ऑफ स्पीच को कर्ब किसने किया? नेहरू ने। 15-20 किताबें बंद करी, बैन करी, इतने लोगों को, एडिटर्स को जेल में डाला, इतना प्रोसिक्यूशन किया, इतने फ्रीडम ऑफ प्रेस को कर्ब किया। ये सब नेहरू ने किया। लेकिन फीलिंग क्या है नेहरू की? और ध्रुव राठी क्या कहेगा? नेहरू वॉज अ लिबरल, क्योंकि शंकर एक कार्टूनिस्ट था। नेहरू ने कहा डोंट स्पेयर मी शंकर। ऐसी चीजें करी। आई हैव अ थ्रेड ऑफ व्हाट नेहरू डिड, बट द पॉइंट इज यू हैव एन एजेंडा, इफ यू डोंट ब्रिंग दैट आउट, दैट्स द इशू। इट सीम्स लाइक इंडियन ये जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है, जुरिस्प्रूडेंस, अब हमारी पॉपुलेशन को ना बहुत। अब मैं आपको 2 एग्जांपल दूं। हाँ, सॉरी सर, अरे दिस इज योर शो। क्योंकि नहीं, मुझे याद है ध्रुव राठी ने कहा डेमोक्रेसी इज अंडर थ्रेट। यस, ठीक है। अब मैं बताता हूँ ये जो ध्रुव ने अपने उसमें बोला नहीं होगा। यू सी द हाई कोर्ट कन्विक्टेड द बीजेपी ऑफ वायलेटिंग FCRA गाइडलाइंस, विच इज फॉरेन करेंसी। यस, रेगुलेशन होता है कि आप डोनेशन में कन्विक्ट किया, ये नहीं कि बोला कि आप गलत काम कर रहे हो। कन्विक्शन दैट कैरीज अ प्रिजन सेंटेंस फॉर द बीजेपी हेड चीफ जो भी था। व्हाट डिड द बीजेपी डू? ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट द बीजेपी अमेंडेड द FCRA एक्ट retrospectively going back to the era of emergency 1976 तक पहुंच गए, rendering the high court toothless। अब ऐसा कुछ केस हुआ, ठीक है, ऑपोजिशन क्या करेगा? सड़क पे आ जाएगा, दंगा करेगा, पार्लियामेंट रोक देगा, सब चीज मतलब कह देगा कि सरकार गिरनी चाहिए, इससे बड़ा करप्शन हो नहीं सकता। ऐसा सुना? नहीं सुना ना? नहीं किया। कांग्रेस ने नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि कांग्रेस भी कन्विक्टेड थी, क्योंकि कांग्रेस हेल्प्ड बीजेपी अमेंड दैट एक्ट। Oh my God! With the help of Congress. Did Rathi say this? No, nowhere near. है, so when Rathi says democracy is under threat, साले कांग्रेस और आप वगैरह ये लोग थ्रेट में नहीं है क्या? और जब राहुल गांधी कहता है कि सुप्रीम कोर्ट को इंस्टीट्यूशनलाइज इसने करप्ट कर दिया, मोदी ने सब गड़बड़ कर दी, मोदी ने नोइंगली सिर्फ एक सुप्रीम कोर्ट जजमेंट को ओवरटर्न किया है। वो SC/ST एक्ट के ड्रैकोनियन प्रोविजंस थे जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप ऐसे ही, किसी ने एक्यूज़ किया आपको, ड्रैकोनियन है ये, और आपने नॉन बेलेबल उसको वो करके अरेस्ट कर दिया। ये हो रहा, बहुत हो रहा है। लोग SC/ST एक्ट पे कह रहे हैं कि इसने मेरे अगेंस्ट कुछ किया, पीपल आर अरेस्टेड डे एंड नाइट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये गलत है। अंबेडकर ने भी कहा था कि ये नहीं होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन के बाद अरेस्ट होना चाहिए, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम ये ड्रैकोनियन प्रोविजन इससे एक्ट से हटाएंगे। Because of political expediency at the altar of getting vote banks, Modi overturned this overturning of the Supreme Court's draconian provision. Why was there no protest? कि Modi has overturned a Supreme Court judgment? Because the opposition supported it. Opposition supported it. आप supported it. अब राठी की दम है कि ये कहे केजरीवाल ने गलत कहा, किया, मोदी को सपोर्ट करके इस सुप्रीम कोर्ट को ओवरटर्न किया, कह दे ये कल, तब डेमोक्रेसी थ्रेट में नहीं आती। सो व्हेन पीपल हैव एन एजेंडा यार, तो मुझे क्या लेना देना भाई, प्रॉस्पर करो आप राठी, गुड लक टू यू यार। बट ये जो आई एम नॉट अगेंस्ट राठी भाई, इफ राठी इज लिसनिंग टू दिस, राठी यू गो अहेड एंड डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, बट इफ यू थिंक दैट यू मेकिंग अ फूल ऑफ मी, राइट ब्रो, दैट्स नॉट हैपनिंग। दैट्स नॉट हैपनिंग। ये जो रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट वाला सीन है, ये भी यूपीआई लाई थी विद वोडाफोन टैक्स। Yeah, absolutely. That is where the precedent for that is set, yes, which is completely absurd from any legal standpoint. अभी सुप्रीम कोर्ट ने फिर कह दिया यार, हाँ, ये जो एनोनिमस इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे था, हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा रेट्रोस्पेक्टिवली जिसने दिया है उसके नाम बताओ। क्यों भाई?
एक लॉ था जिसको एक कंपनी फॉलो कर रही थी। लॉ ने कहा था आपके नाम हम डिक्लेयर नहीं करेंगे, तभी उन्होंने, अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है उनके नाम भी डिक्लेयर करो। तो ये तो मतलब आदमी को बेवकूफ बनाने वाली बात है। कॉमन आदमी बेवकूफ है, कंपनीज बेवकूफ है, बिजनेसेस बेवकूफ है। बिल्कुल। हाँ, और हम घुमा देंगे, अपना मन करेगा फ्रॉम द टॉप वील शेक द वॉन्ड एंड यू विल गो टू जेल। तो अब ये बताओ, ये मोदी ने किया है क्या या सुप्रीम कोर्ट ने किया है? तो अब ये लैक ऑफ डेमोक्रेसी, इंस्टीट्यूशनल, ये कौन कर रहा है? मोदी कर रहा है क्या? मोदी, सिर्फ मोदी, ममता, केजरीवाल ये फायदा उठा रहे हैं, ये फायदा उठा रहे हैं सिस्टम का। सिस्टम, तभी तो मैं कहता हूं भाई, वी आर अ बनाना रिपब्लिक फ्रॉम द मोमेंट वी बिकेम अ रिपब्लिक। I see. I think that's a very proper defense to sort of the stuff he said. And I'm very appreciative of your, like, you are a very intellectually honest person, which is not even close to popular in today's space. बस कर पगले रुलाएगा क्या? अच्छा, I have one मेरी more. वाइफ अगर ये सुन रही है, जरा इसके 2% कॉम्प्लीमेंट भी दे दो यार, अगर मेरी लाइफ सुधर जाए। अभी बोलेंगे सर कटवा देना इसे। या इससे शादी कर लूं? मेरी वाली मारेगी सर, क्यों पंगे कर रहे हैं? नहीं, अभी यूसीसी आया नहीं है। On the UCC, I think वो आपके लिए तो that should be a dream Of course, law, right? absolutely. The playing field is level. आपका हिंदूज इन हिंदू राष्ट्र वाला आर्गुमेंट काफी हद तक सबसाइड कर सकता है with UCC, right? That's what you'd probably say. नहीं, पर उसमें ऐसा एंटी हिंदू तो कुछ नहीं है। नहीं। मतलब जो कि यूसीसी लाने से हट जाएगा। हाँ, मुस्लिम्स आर द वंस हु आर ऑब्जेक्टिंग, right. एंड लुक एट द आयरनी कि जो प्रोग्रेसिव मुस्लिम्स हैं, दे से ओ चाइल्ड मैरिज शुड नॉट हैपन, और एट द सेम टाइम दे आर सेइंग कि भाई यू शुड कीप अलाउइंग अ कम्युनिटी। मतलब तो वही है यार, ये दिस कंट्री इज, जो ये अपने आप को एक्टिविस्ट और ये कहते हैं, देयर आर बंच ऑफ जोकर्स, Convenient thinkers. कन्वीनियंट एजेंडा है सबका। बट आई से इट अगेन, व्हेन वी कैन सफर द पॉलिटिशियंस, व्हाई कांट वी सफर दीज पीपल? Also. सूनर और लेटर ये बनेंगे। अब ये जो बॉक्सर हैं, जर्नलिस्ट, बॉक्सर स्लैश जर्नलिस्ट, नाम पता लगा? नहीं, विजेंद्र सिंह नहीं, वो तो बॉक्सर है। अच्छा, ओके, वो ऑडियंस बता देगी कमेंट करके। हाँ, हाँ ऑडियंस, और बहुत बताएगी। हाँ। क्योंकि मुझे पता है, मैं बता नहीं रहा। अच्छा, आपको पता है? ऑफ कोर्स, मेरे मुंह से निकला। पिटाई इसकी होगी। अब वो बॉक्सर, वो लेडी बॉक्सर जो है, उनकी बीवी है, शी इज जॉइंड पॉलिटिक्स नाउ। तो अब वो जितना, अब वो एजेंडाधारी बन गई हैं, तो उससे क्या मतलब है कि आज ही चेंज हुए हैं? वो शुरू से था, तभी तो पॉलिटिकल पार्टी ने उनको अट्रैक्ट किया, यू नो। अच्छा, माई क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू, आपके लिए बेस्ट केस आउटकम क्या है ऑफ द अपकमिंग इलेक्शन? व्हाट इज द बेस्ट थिंग दैट कैन हैपन फॉर अस एज पीपल? यार देखो, मैं आई एम अ नोटा वोटर, और मैंने इस पे आर्टिकल भी लिखा है, मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, क्योंकि मुझे आज तक कोई ऐसा पॉलिटिशियन मिला नहीं जो कि देश हित में अपना हित ना मिला है। कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल पे कि नेशनल लेवल पे? नेशनल लेवल पे, कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल पे ऐसा, देयर ऑल, इट्स अ डिग्री, इट्स अ ग्रेड ऑफ लेयर ऑफ करप्शन। पीपल मे नॉट एक्सेप्ट कैश, बट इन काइंड दे आर करप्ट। पीपल हैव आस्क्ड मी, अच्छा बेटा राहुल को करप्ट कह रहा है, मोदी को करप्ट कह, मैंने कहा सबसे पहले राहुल से पहले मैंने कहा था मोदी करप्ट है। यू नो, FCRA एक्ट का अमेंडमेंट हुआ, ये मोदी को नहीं पता कि हुआ, उसने करवाया, राइट? ठीक है, और ये उसकी नॉलेज में हुआ। ये अजीत पवार और ये सब लोग इंडक्ट जो हुए हैं, आनंद सिंह इंडक्ट हुआ, राइट, ये सब, तो ही नोज ऑल दिस, ऑफ कोर्स, सो ही इज टर्निंग द अदर वे, राइट? Is that not, that is corruption in my view? He's playing the system, and that He's is playing corrupt. the system. It's तो I am a nota voter. वो मैंने एक बार, केजरीवाल एक आया था जिसने मुझे थोड़ा सा, मैं ये एडमिट करता हूँ, कन्फेस करता हूँ, इसने मुझे थोड़ा उल्लू बनाया था। तब मैं फिसल गया था। तब मैं थोड़ा सा 2011 की बात है। हाँ। बच्चे को कंधे पे उठा के वो झंडा वंडा, उस चक्कर में ना इमोशनल हो गया था मैं। 14 नहीं, 2011 में इंडिया अगेंस्ट करप्शन के। अच्छा, जो वो पूरा वो मोशन, हाँ, ठीक है। 14 में इलेक्शन जीते थे वो। 14 तक मैं समझ गया था। अच्छा। केजरीवाल कौन है। हाँ। 13 में नहीं समझा था। हाँ, 13 में ये जीता था। 13 में जीते थे। बट इसने मेजोरिटी नहीं सरकार की, कांग्रेस का सपोर्ट मिला था या बीजेपी हट गई थी। ही फॉर्म्ड अ गवर्नमेंट, राइट। देन ही रैन अवे टू वाराणसी, रिमेंबर, टू फाइट मोदी। राइट। वो भगोड़ा, तब से भगोड़ा टाइटल आ गया था। हाँ। अब तो बहुत सारे और टाइटल आ गए, लेकिन तब पहले भगोड़ा था। तो तब 2013 से पहले ना, मतलब मैंने 2-3 आर्टिकल्स भी लिखे हैं प्रेजिंग केजरीवाल, भाई ये कर रहा है। वो टाइम ऐसा था कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन, वी थॉट यार दिस गाय इज वन ऑफ अस, हैं, हमारे उससे निकला और ये कुछ करेगा ये वो। 2014, लेकिन नोटा वोटर मैं था, मैंने तब भी इसको वोट नहीं किया। मैंने कहा कि यार दिस गाय डिजर्व्स दिस थिंग। मैंने अपनी बीवी से इसको वोट कराया, और 10 साल में हर बार मैं ताने देता हूँ बीवी को, देखो तुम लाई हो केजरीवाल।
तो इतने बेलन पड़े हैं मुझे, इतनी गालियां, कहती तुमने वोट कराया। मैंने कहा कि अल्टीमेटली क्या हुआ, तुमने वोट किया ना, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर केजरीवाल। देखो अगर हम बाय लॉ जाए, बीवी से ही नहीं अपने इन लॉज से भी वोट करवा रहे। माय लॉर्ड ताने देता हूं, माय लॉर्ड मैंने वोट नहीं किया। तो ये सिचुएशन है। सो आई एम अ नोटा वोटर, आई फील आई शुड नॉट कॉमेंट ऑन इट। पीपल आर, एवरी पॉलिटिशियन इज करप्ट, दैट इज माई डिक्टम, आई हैव एक्सप्लेन टू यू। यस, but the fact of the matter is people can see a lot of things that Modi and this government is doing that have never been done before at a pace. It is frightening. मैं तो कल ही मैंने बोला है, गडकरी ह्यूमन नहीं है, गडकरी एलियन है। अग्रीड। जिस तरीके से रोडें बन रही हैं, हाईवेज बन रही हैं, नेक्स्ट लेवल, क्रेजी। आई एम वेरी हैप्पी दैट दिस इज इंडिया नाउ। हाँ, मैडनेस चल रही है। तो लोग देख रहे हैं, लोग खुद जानते हैं कि एक तरफ उनकी चॉइस ये है, एक तरफ वो है। मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, आई जस्ट कोट द फैक्ट्स। नहीं, आई एग्री सर, वो तो कोई डाउट में ही नहीं है दैट बीजेपी इज कमिंग एंड कमिंग स्ट्रांग। और वो भी कोई डाउट नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम सब जैसे द क्रिटिसिज्म इज तुम सब बेवकूफ बने हुए। हम बेवकूफ नहीं बने हुए, हमें दिख रहा है और हम बड़े खुश हैं। बनेगा यार? हाँ, और हम सारे बेवकूफ देखो, गो टू दी समथिंग दैट इज बिहाइंड द सेकंड लेयर, Right. इज मोर इंपॉर्टेंट देन द फर्स्ट लेयर। राइट। So the first layer is Modi gave a toilet to the poor family. That's the first layer. यस, The second layer is the more crucial one, जो बीजेपी भी एक्सप्लेन नहीं करती है। वहाँ पे ये मात खा जाते हैं। जैसे मैंने कहा है, कांग्रेस इज अ मास्टर एट डिसेप्शन, बीजेपी इज अ डिसास्टर एट परसेप्शन। सेकेंड लेयर ये भूल जाते हैं भाई, सबसे ज़रूरी वो है, क्योंकि एक ये साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन हुआ है, जर्नल में पब्लिश्ड है। एवरी न्यू टॉयलेट मेड हैज सेव्ड द फैमिली 52,000 रुपीज इन हेल्थ कॉस्ट। वाओ, 50,000 कितना मायने रखता है, आप सोच सकते हैं एक पुअर फैमिली के लिए। दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव। हाँ, When was the last time you heard a BJP guy saying this? नथिंग, नेवर। Every new tap water connection made has slashed the diarrhea occurrence. Every new gas connection made has saved a life. Every year, 150,000 lives are being directly saved through Ujjwala scheme. When was the last time you saw a BJP guy saying this? तो सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर पे जाओ, और वो सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, फर्स्ट लेयर ऑपोजिशन को भी दिख रही है, बीजेपी को भी दिख रही है, वो उसमें लड़ रहे हैं, ये दिया वो दिया। सेकेंड और थर्ड लेयर ना वोटर्स को दिख रही है भाई। जिसके 50,000 रुपए बचे हैं, वो किसको वोट देगा? मोदी को वोट देगा। बहुत ऑब्वियस बात है, बहुत ऑब्वियस बात है। आई डोंट नीड टू से एनीथिंग। Right. And honestly, the Indian voter is not stupid. Right? Absolutely this, not, my This God. infantilization of the Indian masses, I've never been fond of either by institution, Yes. या तो court infantilize या parliament, या जो ये high-end intellectual sort of mindedness है। मैं सोचता हूँ आदमी अपने लिए तो सोच ही लेता है, ठीक है, दुनिया के लिए ना सोचे। दोनों साइड वैलिड है। अभी ये जो नया सिली स्लोगन शुरू हुआ है, 4 अब की बार 400 बार, क्यों कर रहे हो यार ये? Right. Why are you doing this? हाँ. This is giving the impression that you're overconfident. This brings back that thing of India shining in 2004. Right. You know? बिल्कुल बिल्कुल। Why do you need to do this? तुम जीत Leave it रहे to हो। the voters यार। अगर आप जीत रहे हो तो यार, मतलब why are you saying 400 अब की बार 370 400 बार and you so just be quiet. You've done your job. Keep doing your job. Your job is speaking for itself. Your job is speaking for itself यार। हाँ हाँ हाँ, ये heavy handed campaigning करने की जरूरत शायद ना हो। एक वो, और दूसरा बीजेपी जीत रही है, कोई इन सालों को बता दे कि ये जीत रही है। इनको नहीं पता, मुझे लगता है। सही में? They want to win at all cost. अब ये टीएमसी के करप्ट नेताज, ये एनसीपी, इनको लेने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? What और impression is it giving? हाँ, for people like us, why are you losing us as like? एक दिन करप्ट कह रहे हो, अगले दिन उनको इंडक्ट कर रहे हो। What is the rationalization you are giving? Right. I see what you mean. Don't you also think कि यार एक नुकसान है कि हमारी opposition इतनी weak हो गई है ना, कि there is no pressure from the outside at all. और मतलब frankly, Rahul Gandhi keeps going down that loop where it is just becoming more and like the joke is a joke at this point where I don't know, मैं चाहता हूँ seriously लेना यार, मैं चाहता हूँ एक serious opposition हो, but you're like मैं क्या तो बोलूँ यार, like वही एक black hole सा बन गया है opposition के नाम पे। और ये इस देश की बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। ये realize नहीं करते लोग। ये बीजेपी वाले रियलाइज नहीं कर रहे यार। ये सी ऑपोजिशन रियलाइज करे ना करे, आई डोंट गिव अ डैम। प्रॉब्लम है कि जितनी भी प्रो नेशनल डिसीजंस बीजेपी ने ली है, दैट्स व्हाई आई से मोदी इज ब्लेस्ड टू हैव द ऑपोजिशन ही हैज। जितनी भी फॉर नेशनल इंटरेस्ट डिसीजन लिए, ऑपोजिशन इज अगेंस्ट इट, ठीक है। जितनी भी अगेंस्ट नेशनल इंटरेस्ट लिए, एंटी नेशनल डिसीजन ऑफ मोदी, मैं कहता हूँ ऑपोजिशन इज फॉर इट। ऑपोजिशन इज फॉर nationalizing thing, not privatizing anything.
ऑपोजिशन वॉज फॉर द रिपील ऑफ फार्म लॉज. ये सारी एंटी नेशनल डिसीजंस हैं. ये तो ऑपोजिशन सपोर्ट कर रहा है. जो डिसीजन नेशन के हक में लेता है मोदी जी, उसको ये अपोज करते हैं. तो ये तो ब्लेसिंग ही हो गई ना. भाई राहुल गांधी को क्यों कहते हैं भाई, बीच में बहुत घबरा गए थे बीजेपी वाले जब राहुल गांधी कन्विक्ट हो गया था. हाँ, क्योंकि कौन भाई हमारा प्रचार कौन करेगा. रियल बात है. कांग्रेस को इतने करोड़ों रुपए पैसे दिए हुए हैं भाई रैलीज के लिए. अब कल मणिशंकर अय्यर मिला नहीं तो लालू प्रसाद यादव को बीजेपी ने आगे किया ना. ओह माय गॉड. ये डू यू थिंक दिस फार्म लॉज थिंग जो भी दोबारा प्रोटेस्ट खड़ी हो रही है, दिस इज अ प्री इलेक्शन सॉर्ट ऑफ बेट, है ना? कि ये मिस्टेक करें, कुछ गलती करें, कोई एक हाई हैंडेड स्टेप लें. राइट. This is what I mean. I don't think people realize the PR machinery that goes behind this stuff. Totally. I wanted to bring up Gyan Vapi, but I feel like अब वो it is sort of past this conversation. हाँ, time भी काफी निकल चुका है. I will leave you to it. Is there any question you have for me? You don't have to ask, by the way. I'm sure you're rushed. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. Yeah, but I mean, I want to congratulate you. Thank you. I thoroughly enjoyed this discussion. It was wonderful. Thank you. It was like drawing room में बैठे हुए हैं. हाँ. और we just having a nice friendly chat. That is what I think a podcast should be. Thank you, sir. And more power to you. Thank you. Appreciate it. Thank you for your time and thank you for your space. This has been an absolutely wonderful session. I enjoyed it more than possibly you did. So Thank you so much. Thank you. If you're passionate about conversations like this, and if you think, Prakhar, I'd like to listen to more conversations like this, then I must tell you, there is a subscribe button right here and a bell icon right next to it. And it's your moral obligation to press that. Press the subscribe button and I'll see you around for more conversations just like this.